Now we people will talk about arithmetic progression. What is meant by arithmetic progression? That we can understand in better way with the help of some examples. So I'm going to write some examples bachcho here. This is 1, this is 5, this is 9, this is 13, this is 17, and likewise. If we talk about this particular sequence bachcho, what you find? You find that difference of any two successive terms like between 1 and 5, between 5 and 9, between 9 13, between 13 17, you find that difference of any two successive terms is always 4. If you add 4 in this one, then you get 5. If you add 4 in this 5, then you get 9. If you add 4 in this 9, then you get 13. If you add 4 in this 13, then you get 17, and likewise. Now let me have another example. But suppose this is 2, this is 5, this is 8, this is 11, this is 14, and likewise. If you talk about this particular progression, what you find bacho? The difference of these two is 3, difference of these two is 3, difference of these two is 3, difference of these two is 3. Always you find that difference of every two or any two successive consecutive terms is found to be 3, and in this case it is 4. If you add 3 in this number, you get this one. If you add 3 in this one, then you get this one. If you add 3 in this one, then you get this one. Likewise, let me have another example. But suppose I do have a progression 2 and minus 1 and minus 4 and minus 7 and minus 10, and likewise. If I talk about this particular progression, what I find bacho, if I determine the difference of these two, then I get minus 3. If I determine difference of these two, I get minus 3. Likewise. What does it mean? It means that if I add minus 3 in this number, I get minus 1. If I add minus 3 in this number, I get minus 4. If I add minus 3 in this number, I get minus 7. If I add minus 3 in this number, I get minus 10. Likewise. So what I am finding here, I find here that difference of any two successive terms is same. It's okay. Here the difference is 4. Here the difference is 3. Here the difference is minus 3. Maybe another sequence of may I have suppose this is 5, this is 3, this is minus 1, and this is this is 1, and this is minus 1, this is minus 3, this is minus 5. Then now if we talk about difference of any two successive terms, you find it is minus 2, 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 you find it is minus 2. So in this sequence I find that difference of every two successive terms is minus 2. If I add minus 2 here, I get this. If I add minus 2 here, I get this. If I add minus 2 here, I get this. So such type of progression bachcho which you people are seeing over here, in which a difference of every two successive terms is same, is actually known as bachcho arithmetic progression, which we usually abbreviate by the symbol AP. Actually we used to write AP, not symbol. I should not say symbol. Actually this is actually abbreviated as AP, arithmetic progression, or you can say arithmetic sequence, or you can also say bacho arithmetic series as well, because we people have seen that progression, sequence, series, they all are same things. So you can also abbreviate them by AS. So any progression bacho in which difference of any two successive terms is same is known as arithmetic progression. And what the same difference we people are finding over here? Of course, difference in this progression is different from this one. The difference in this progression is different from this one. The difference in this progression is different from this one. But what I am saying that the difference between any two successive terms is same. I'm not talking about that the difference here should be same to this one. I'm saying that what is the difference between this first and second term should be between second and third term, between third and fourth term, the difference should be same. Likewise, if you talk about this progression, so any progression bacho in which every next term is obtained by adding some constant number, some fixed number, some common number in the previous number, we get in the previous term we get another number. What I am saying, if I add minus 3 here, I get this one. If I add minus 3 in this number, I get this one. So to obtain the next term, I simply need to add minus 3 in the previous term. To get the next term, I simply need to add minus 2 in the previous term. To get the next term, I used to add 3 in the previous term. Likewise, to get the next term, I need to add
4 in the previous term, so that I will be getting the next one. So such progressions in which the difference of any two successive terms is constant, or you say in which every next term is obtained by adding some constant number in the previous term, is known as बच्चों arithmetic progression. Mathematically this simply can be written as tn minus 1 is equals to constant. What is mean by tn? Tn says nth term, tn means nth term, and what is mean by tn minus 1? This represents बच्चों n minus 1th term. So here what I am finding that the difference of nth term and n minus 1th term is constant, and that constant should be a constant throughout. What I mean by this, suppose if we talk about this is a progression 1 3 6 10. Here what I am finding, the difference of these two is 2, difference of these two is 3, difference of these two is 4, difference of these two is 5. Of course difference of any two successive terms is constant. Here the difference between these two is 2, which is obviously a constant. Difference between these two is 3, which is obviously a constant. Difference between these two is 4, which is also a constant. But what I mean here, actually the constant is not same throughout. Here that constant is 2, while here it is 3, here it is 4, here it is 5. The constant should be same throughout the sequence. बच्चों in this progression you can find difference is same, which is equals to 4 everywhere. The difference is 3 everywhere. Difference is minus 3 everywhere. Difference is minus 2 everywhere. So difference should be same everywhere across or along the complete sequence. पूरी सीक्वेंस में डिफरेंस हर जगह एक जैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं डिफरेंस कुछ है, कहीं डिफरेंस कुछ है ना. हर बार अगर डिफरेंस बच्चों यथावत, नियत, कांस्टेंट, फिक्स्ड, अनचेंज्ड रहता है, सच अ प्रोग्रेशन वी कॉल एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है बच्चों? जिसके कोई दो सक्सेसिव टर्म्स जैसे कि nth टर्म और n माइनस 1th टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहे. मतलब कहने का ये कि जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट टर्म का है वही थर्ड और सेकंड का हो, वही बच्चों फोर्थ और थर्ड का हो. भाई आप लोग ये तो जानते हो कि जो nth टर्म होता है उसे हम tn से या an से रिप्रेजेंट करते हैं. हम ऐसे या ऐसे किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों? कि जिसमें सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड फोर्थ का डिफरेंस, सेकंड फोर्थ का डिफरेंस, सेकंड थर्ड का डिफरेंस हमेशा क्या रहे? एक जैसा रहे. यहाँ जो डिफरेंस है वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ. ऐसा नहीं कि यहाँ अलग है आगे अलग है ना. हर जगह अगर डिफरेंस सेम रहता है बच्चों, सच अ प्रोग्रेशन इज नोन एज एपी. उससे हम लोग क्या एब्रिविएशन देते हैं बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम देते हैं, एपी उसे एब्रिविएशन देते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में उसे कहा करते हैं बच्चों. और ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि हर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है. अब जनरलाइज वे में अगर मैं किसी एक एपी के बारे में अगर बात करूं बच्चों, तो वो कैसी बन सकती है, मैं उस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा. तो देखिए, एक एपी को हम जनरलाइज वे में क्या बोल सकते हैं? ए. फिर बच्चों मैं अगर इसमें कोई कांस्टेंट नंबर डी को ऐड करता हूं तो मेरे पास में अगला नंबर ए प्लस डी आएगा. भाई आपने कोई नंबर ए था, इसमें किसी कांस्टेंट नंबर डी को ऐड किया तो आपको एक नंबर मिला ए प्लस डी. फिर अगर मैं इसमें वापस से कोई कांस्टेंट नंबर, उसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करना है. बात ये ना कि हर बार जिस नंबर का को ऐड किया जाना है वो सेम होना. ऐसा नहीं कि यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो ये एपी नहीं कहलाएगी बच्चों. दिस वॉन्ट बी एन एपी. सो ए में आपने डी ऐड किया, ए प्लस डी मिला. इसमें डी ऐड किया, ए प्लस 2d मिला. और फिर आपने इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस 3d. भाई 2d में डी ऐड कर देंगे तो 3d, फिर आप ऐड कर देंगे तो बच्चों ए प्लस 4d. इस तरह से ये एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. ये एक एपी की जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई कि ए इसमें डी ऐड किया, फिर ये, फिर डी ऐड किया, फिर डी ऐड किया, लाइकवाइज. सो ये इस तरह से एक सीक्वेंस बन गई हमारे पास में. इस तरह की एक एपी बन गई. क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस डी. सो यदि बच्चों कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम रहता है तो उससे हम बोला करते हैं एपी. एंड एनी एपी कैन बी कंपेयर्ड और कैन बी रिलेटेड, कैन बी यू कैन से रिप्रेजेंटेड इन दिस वे. और जो कांस्टेंट नंबर का हर बार डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, या इससे पहले जो आ रहा था, वो जो कांस्टेंट डिफरेंस आया करता है बच्चों, वो हर बार सेम आता है. इसीलिए उस डिफरेंस को हम लोग बच्चों कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं. हम उस डिफरेंस को क्या बोला करते हैं बच्चों? दैट डिफरेंस वी
उसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका, स्टैंडर्ड नोटेशन है कि जो डिफरेंस हर बार आ रहा है एक जैसा आ रहा है पहली बात, और उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस, कॉमन क्यों, क्योंकि वो कॉमन है, जो इन दोनों का वो इन दोनों का, वो इन दोनों का वो इन दोनों का, वो इन दोनों का वो इन दोनों का, वो इन दोनों का, हर बार वो डिफरेंस सेम आ रहा है। जो डिफरेंस इन दोनों का 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 वो हर बार सेम आ रहा है। लाइकवाइज सो ऐसा जो डिफरेंस होता है बच्चों, उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं बच्चों, तो इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डी, इन दोनों का डी, इन दोनों का डी। सो ये जो डिफरेंस है बच्चों, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो और ये जो सबसे पहला जो नंबर लिखा है बच्चों, इससे हम लोग कहा करते हैं फर्स्ट टर्म। सबसे पहले नंबर पे जो आया बच्चों, उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करनी हो, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 है और फर्स्ट टर्म 2 है। यहाँ पर अगर मुझे कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करनी है, तो वो -3 है और फर्स्ट टर्म 2 है। यहाँ पर यदि मुझे कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करनी है, तो वो -2 है और फर्स्ट टर्म बच्चों 5 है। क्या कहा मैंने आपसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस बच्चों -2 है। तो जो हर बार डिफरेंस चल रहा है उसे आप कॉमन डिफरेंस, और सबसे पहले नंबर पर जो होता है बच्चों, उसे हम लोग कहा करते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से कर भी लिया होगा आपने। चलिए, सो एक एपी जो होती है बच्चों, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है, उससे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये आपके पास में ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म क्या बच्चों, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या बच्चों, ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या बच्चों, ए प्लस 4d। जरा समझे हम लोग, भाई ये कौन सा टर्म है आपके पास, ये आपके पास में है बच्चों फर्स्ट टर्म, जैसे हमने a1 लिखा। ये हमारे पास में बच्चों सेकंड टर्म, जैसे हमने a2 लिखा। ये हमारे पास में बच्चों थर्ड टर्म, जैसे हमने a3 लिखा। ये हमारे पास में बच्चों फोर्थ टर्म, जैसे हमने a4 लिखा। और ये हमारे पास में बच्चों फिफ्थ टर्म, जैसे हमने a5 लिखा, एंड लाइकवाइज। अब यहाँ पर जो आपके पास में बच्चों फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को अगर मैं a प्लस 0d लिखूं, तो मैं नहीं समझता कि कोई गलती वाली बात होगी। भाई a कैन आल्सो बी रिटन एज a प्लस 0d। और जहां तक सेकंड टर्म का बात है बच्चों, तो उससे मैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। भाई ये a प्लस डी आया है, और इस d को अगर मैं 2 माइनस 1 इंटू डी लिखूं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग विच इज जिससे कि हार्मफुल हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो नुकसानदायक हो या गलत हो। हाँ भाई, अरे भाई यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मैं इस 2d को 3 माइनस 1 इंटू डी लिखूँ, तो कुछ गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। भाई 3d कैन बी रिटन इन दिस मैनर। लाइकवाइज बच्चों, इससे आप लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज 4d कैन बी रिटन एज 5 माइनस 1 इंटू डी। सो फर्स्ट टर्म आ रहा है ये, सेकंड टर्म आ रहा है ये, थर्ड टर्म आ रहा है ये, फोर्थ टर्म आ रहा है ये, फिफ्थ टर्म आ रहा है ये। सो इसी तरीके से बच्चों, यदि मैं इसका nth टर्म मालूम करना चाहूँ, यदि मैं क्या मालूम करना चाहूँ बच्चों, इसका nth टर्म, तो nth टर्म मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए, जिसे हम a n या फिर t n से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म के टाइम पर आपने क्या लिखा, a प्लस 0d। अच्छा, a प्लस 0d को भी मैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। 0 को मैं 1 माइनस 1 लिखूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको, लगे तो भी मैं लिखूंगा तो सही भैया। हाँ, तो ये आपके पास में फर्स्ट टर्म। देखिए, फर्स्ट के टाइम पर आपने 1 माइनस 1 लिखा, सेकंड के टाइम पर 2 माइनस 1, थर्ड के टाइम पर 3 माइनस 1, फोर्थ के टाइम पर 4 माइनस 1, फिफ्थ के टाइम पर बच्चों 5 माइनस 1। तो लाजमी है nth के टाइम पर क्या होगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ के टाइम पर आपने लिखा 4 माइनस 1, फिफ्थ के टाइम पर लिखा 5 माइनस 1, थर्ड के टाइम पर लिखा 3 माइनस 1, 2 के टाइम पर लिखा 2 माइनस 1। मतलब जो नंबर है उसमें से आप एक माइनस कर रहे हो। देखो ना, आपने सेकंड टर्म के टाइम पर बच्चों 2 लिखा, थर्ड टाइम के टाइम पर 3 लिखा, फोर्थ टाइम के टाइम पर 4 लिखा, फिफ्थ टर्म के टाइम पर 5 लिखा। सो n के टाइम पर भैया मैं n माइनस 1 लिखेगा। आए यस, तो ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास में। हाँ भैया, तो ये आपके पास में क्या आ चुका बच्चों, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जिसमें a फर्स्ट टर्म हो और d बच्चों उसका कॉमन डिफरेंस हो।
कंपेयर कर लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। A3 के टाइम पर 3 लिखा, A4 के, भाई A हर बार आ रहा है, A हर बार आ रहा है, D हर बार आ रहा है, -1 हर बार आ रहा है। 2 के टाइम पर 2, 3 के टाइम पर 3, 4 के टाइम पर 4, तो 5 के टाइम पर 5, तो n के टाइम पर बनता बच्चों n आ जाएगा। और इस तरीके से ये किसी AP का बच्चों nth टर्म आ जाएगा, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और इसी पर बेस बच्चों एक बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ बच्चों। हमारे पास में एक प्रोग्रेशन दे रखी है 1, 6, 11, 16, 21 एंड लाइकवाइज। ये आपके पास में आपसे पूछा है बच्चों फाइन 100th टर्म। आपसे क्या पूछा बच्चों, इसका 100th टर्म आपको बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ये एक AP है। ऑफ कोर्स AP का लेक्चर चल रहा है तो प्रॉब्लम सर AP की ही देंगे, ये तो अकल सबको लग रही होगी, बट दैट हैज टू बी वेरीफाइड रियली, क्योंकि दिस टाइम वी पीपल आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द फ्यूचर केसेस यू विल बी सीइंग another types of progression, maybe geometric progression, maybe harmonic progression, maybe some another type of progression which do not belong to these particular categories. So that has to be verified first of all. So here if we talk about a difference between these two, the difference between first and second, by if these numbers you can see what is happening here bachcho, the difference of between these two is 5, difference between these two is 5, difference between these two is 5, difference between these two is also 5. So what I see, difference of every two successive terms is same, and since difference of every two successive terms is same, so I can say this is a sequence which we can call as arithmetic sequence. Now you just compare it so that you get value of A equals to 1. The first term is equals to 1, correct? The first term is represented by symbol A, and here the first term is very clearly 1. And what about difference? Difference बच्चों जो होता है वो होता है 6. सॉरी डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, जो हर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है, और वो कितना आ रहा है बच्चों 5. सो हर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस 5 है, और फर्स्ट टर्म बच्चों यहाँ पर 1 है. वेल एंड गुड. और आपसे कौन सा टर्म पूछा है बच्चों, आपसे 100th टर्म पूछा है, मतलब n की वैल्यू 100. सो बच्चों यहाँ पर 100 टर्म जो होगा वो होगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू 1 और ये 99, और डिफरेंस की वैल्यू बच्चों कितनी 100. अरे a की वैल्यू 1 आएगी ना बाबा, ये 100 माइनस 1 ये 99 होगा ना. और मैं कितना गलत करता हूं ना, आप भी बोलते हो कि सर ये क्या मजाक बना रखा है. d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू 5, 495 प्लस 1 बच्चों 496 हो जाएगा. सो अगर मैं इस प्रोग्रेशन को ऐसे ही सतत रूप से, निरंतर रूप से, लगातार रूप से लिखते जाऊंगा, देन आई विल सी दैट 100th नंबर पर जो टर्म आएगा दैट विल बी हैविंग द वैल्यू 496. चलिए लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम. बच्चों हमारे को एक और प्रॉब्लम चलिए दे रखी है यहाँ पर 2, 9, 16, 23 इस तरह की, और हमसे पूछा है बच्चों इसका 23rd टर्म. कौन सा टर्म पूछा है हमसे, इसका 23rd टर्म पूछा है बच्चों. आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए, देखिए अब आपसे इसका कौन सा टर्म पूछा है, 23rd टर्म. तो पहली बात तो ये बच्चों कि आपको यहाँ पर ये वेरीफाई करना जरूरी है कि क्या ये एक AP है. यदि आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 7 है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 7 है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 7 है. चूंकि हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है बच्चों, इट इज आई कैन से दिस इज एन AP. दिस इज एन AP बच्चों. एंड व्हाट अबाउट इट्स फर्स्ट टर्म विच इज 2. भाई फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले आ जाए उसे फर्स्ट टर्म कहोगे, उसमें कौन सी बात है. और कॉमन डिफरेंस जो हर बार जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, और वो डिफरेंस मड़ा क्या दिख रहा है भैया, 7 दिख रहा है. और कौन सा टर्म मैं ज्ञात करना भाई, मैंने ज्ञात करना भाई 23rd टर्म. तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू को 23 ले लूंगा, और 23rd टर्म पूछा है मतलब T23, जो का कैसे निकलेगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू इतनी, n की वैल्यू 23 माइनस 1, और d की वैल्यू बच्चों 7. 22 7 जा 154 प्लस 2 156 होता है मेरे ख्याल से. देख लीजिएगा बच्चों मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं किया है. ये आपके पास में बच्चों किसी AP का nth टर्म आया है. क्या आया है बच्चों, AP का nth टर्म. चलिए हमें एक और प्रॉब्लम देखते हैं. जैसे हमें यहाँ पर दे रखी है बच्चों 2, 6 और ये लीजिए 10, ये लीजिए साहब 14 लाइकवाइज, और
इस तरह से आपको दे रखी है बच्चों, ये एक प्रोग्रेशन दे रखी है। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन, कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट यू सी बच्चों, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा वैसे एक बार पहले। सबसे पहली बात तो ये बच्चों की आप देख लीजिए, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है। देखिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि चलो साहब ये डिफरेंस है, ये है, लेकिन अभी चूंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी चूंकि हम लोग एपी पर बेस प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए हमको मालूम है कि हाँ यार एपी ही आएगी। लेकिन अगर कभी कुछ अलग तरह की प्रोग्रेशन आ गई तो हम उलझ जाएंगे। सो इसीलिए पहले ये वेरीफाई करना जरूरी है ना भैया, एपी है भी सही कि नहीं है। चलिए, सो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी बच्चों 2 और डी की वैल्यू कितनी बच्चों 4, हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अभी पिछले 2 सम्स में आप लोगों को फलाने नंबर का टर्म निकालना था, यहाँ पर फलाना टर्म दे रखा है, वो फलाना नंबर कौन सा वो आपको डिटरमाइन करना है। सो ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 4 है, और बच्चों nth टर्म जो यहाँ पर दे रखा है भाई, मैंने वो दे रखा है 222। मैंने ये पूछा कितने टर्म है भैया थे, क्या है भाई, कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सो हाउ आई विल गो अहेड बच्चों, I will put this identity over here, an, that is nth term is given by this symbol. What is meant by an? वो तो आपको दे रखा है बच्चों 22, a 2 है, n मैंने फाइंड करना भाई, d कितना आएगा भाई 4, इसमें से इसको माइनस कर दोगे भाई, 222 में से 2 को माइनस करने का पड़ेगा ना मेरे को। सो यहाँ से बच्चों ये 220 आएगा आने वाला, तो 222 में से 2 जाएगा बच्चों तो 220 आएगा, और 4 से डिवाइड कर दोगे तो 55 आएगा। 55 की वैल्यू n-1 आएगी, तो n चा मान 55 + 1 यानी 56 आए भाई, n चा मान 56 आए। अरे nth टर्म आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, n-1 आपको फाइंड करना है, d आपको दे रखा है बच्चों। इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया भाई, कौन से नंबर का वो टर्म है, 56th टर्म जो है वो 222 होगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ऑब्वियसली 56, बिकॉज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और सीरीज इज एंडिंग एट 222 विच इज 56 टर्म। सो आई कैन से देयर आर इन टोटल 56 टर्म्स। तो इस तरीके से हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। चलिए एक और सम लिखिएगा बच्चों, इफ fifth term of an AP is 23. If fifth term of an AP is 23 and 15th term is 49. क्या कहा प्रश्न में बच्चों आपसे, if fifth term of an AP is 23 and कौन सा मैंने बोला इसके बाद में 15th टर्म बोला, यानी पहले क्या बोला था मैं भी भूल रहा हूँ, अदरवाइज अब 15th लिख दीजिएगा। 15th टर्म जो है बच्चों वो 49 है। आपसे बच्चों इस एपी का 25th टर्म फाइंड आउट करने को कहा गया। वीडियो को जरा रोकिए और करिए। देखिए साहब, आपको एक एपी यहाँ पर गिवन है, आपको बोल रखा है कि एक एपी है और उस एपी का जो 5th टर्म है उसकी वैल्यू 23 है और 15th term 49 है। So let the first term of that AP is A and let the common difference of that AP is D. माना कि उस AP का फर्स्ट टर्म A और उसका कॉमन डिफरेंस D है। अब उसका 23rd टर्म क्या होगा, उसका 23rd टर्म होगा बच्चों A + 23 - 1 × D। यही छोड़ेगा भाई, AP का मैंने फर्स्ट टर्म A मान लिया, कॉमन डिफरेंस मैंने D सपोज कर लिया, तो उसका 23rd टर्म क्या होगा A + 23 - 1, nth टर्म का फार्मूला ये होता है। और उसकी वैल्यू आपको, यार मैं क्या करता हूँ, उसका 23rd टर्म थोड़ी ना निकालना है मुझे, तो 5th टर्म निकालना है यार, मुझे कौन सा टर्म निकालना है, मैंने 5th टर्म निकालना, और 5th टर्म की वैल्यू 23 है, 5th टर्म की वैल्यू 23 है, ये मुझे गिवन है साहब। तो मैं ना बहुत गलत लिखने का आदी हूँ, गलत बोलने का आदी हूँ, और इससे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूं। अभी अगली बात क्या बोल रहे हैं कि 15th टर्म क्या होगा, 15th टर्म होगा बच्चों A + 15 - 1 × D और उसकी वैल्यू है 49 है।
और इस बेसिस पर बच्चों ये आ जाएगा a प्लस 14d इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 49, ये लीजिए, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ two variables a and d which have to be solved to find out the values of a and d, and how this could be done बच्चों, this could be done by simply you do one thing बच्चों, you determine the difference of second and first. What about the second equation? The second equation is a plus 14d, and what about first equation? A plus 4d. And what about this? This is 49. What about this? This is 23. ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल माइनस कीजिए. इसमें से इसको माइनस अगर मैं करता हूं बच्चों तो a से a कैंसल, और ये कितना आएगा बच्चों 13d, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 26. क्या बात है भैया, बहुत अच्छा हो गया. ये तो a की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी d की वैल्यू 2 आ गई. d की वैल्यू मैंने आ गई भाई कितनी, यहाँ से मैंने इसमें से इसको माइनस करा, तो मैं तो भगवान मेरे से बचाए आपको ना. आप शायद यही सोच रहे होगे कि सर कितनी गलती करते हो यार, 14 में से 4 जाएंगे तो 13 ले आए अपने मर्जी से ताकि इजीली सॉल्व हो जाए. नहीं हो रहा भैया, सॉरी. d की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 13/5. वैसे गलती इंसान को करते रहना चाहिए ताकि लोग उसके ऊपर ध्यान दें. कुछ लोग गलतियाँ इसीलिए करते हैं ईमानदारी से, जैसे मैं इसीलिए गलती करता हूँ क्योंकि लोग मुझ पर ध्यान दे, वरना ध्यान नहीं देते. जैसे बीवियाँ जो होती है ना, वो कभी ध्यान नहीं देती. जब तक आप गलती करोगे तो खट से ध्यान देंगे. तो आदत पड़ चुकी है. अब शादीशुदा इंसान की मजबूरी है, वो बेचारा जो है वो गलतियाँ इसीलिए करता रहता है ताकि बीवी ध्यान देती रहे, और उसको माफ़ी मांगने की भी आदत इसीलिए पड़ जाती है कि भैया माफ़ी मांगते रहो, गलती नहीं भी की हो तो भी माफ़ी मांगते रहो. और बीवियाँ भी बड़ी अच्छी होती हैं, जब हस्बैंड गलती नहीं भी करता तब भी माफ़ कर देती हैं. अभी इधर आ जाइए बच्चों, d की वैल्यू 13/5 है, और d की वैल्यू 13/5 को मैं यहाँ रख देता हूँ. रख दूँ, चलिए रख देते हैं. सो यहाँ पर मैं a प्लस 4 प्लस इंटू 13/5 और इज इक्वल टू कितना है बच्चों 23. भाई दिस वैल्यू ऑफ d you can put into any of these two equations so that I get a is equals to 23 minus 52/5, and 23 5s are 115 minus 52/5. So this would give us the value of a. ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, a की. 48 प्लस 15 कितने होते हैं, मेरे ख्याल से होते हैं 63. होप मैंने सही करा है. ये a की वैल्यू आ गई है भैया. a की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गई 63/5 आ गई, और d की वैल्यू कितने आ गई बच्चों 13/5. अब आपसे कौन सा टर्म पूछा है, यू पीपल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 25th टर्म, एंड 25th टर्म कैन बी डिटरमाइंड इन दिस वे, a प्लस 25 minus 1 into d. And what about a, that is 63/5. What about 24, and what about d, that is you can see is 13/5. अब सिंपल आपको मैथमेटिक्स लगाना है बच्चों. 63 24 3 72 होते हैं, 240 में ऐड कर दोगे उसको तो 312 आ जाएंगे, अपॉन 5 आ जाएगा. क्या बात है बच्चों, इनको ऐड करोगे 375/5, यानी कि 3 5 75 और ये 5. होप सही है ना भाई ना, ये 5 थोड़ी ना आएगा, 75 आ जाएगा. मेरे ख्याल से मैंने सही करा. मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, किसी एपी का 5th टर्म आपको दे रखा है 23, तो 5th मैंने एपी का फर्स्ट टर्म मैंने ए सपोज कर लिया, कॉमन डिफरेंस मैंने डी सपोज कर लिया, तो 5th टर्म की वैल्यू होगी बच्चों a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू कितनी है 23. 5th टर्म होगा बच्चों a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू 23. सो आपके पास में एक इक्वेशन ये बनी. और 15th टर्म क्या होगा बच्चों 49, जिसकी वैल्यू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, जिसकी ये आ गया. अभी आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, सेकंड है ये फर्स्ट है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच्चों a से a कैंसल, 10d इक्वल्स 26, सो d इक्वल्स टू 13/5 आ जाएगा बच्चों. और d की वैल्यू को आप इसमें रख देंगे तो यहाँ पर 115 में से 52 जाएंगे, 15 प्लस 48 63 ही आते हैं मेरे ख्याल से. और बच्चों आपको 25th टर्म निकालने का मतलब ये कुछ हो जाएगा. मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, जटिल काम तो नहीं बताया था मैंने आप लोगों को. सो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में अगर हमें कोई 2 टर्म्स दे रखे, हम तीसरे टर्म की वैल्यू बता सकते हैं. चलिए एक और प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड कीजिएगा बच्चों. किसी एपी का mth टर्म आपको दे रखा है बच्चों 1/n. mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म of an AP is 1/m. mth term of an AP is 1/n and nth term of that AP is 1/m. Find its
mth टर्म, आपको इसका mth टर्म फाइंड आउट करना है बच्चों। वीडियो को तत्काल रूप से पॉज करके कीजिए। चलिए अभी आप क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं। पिछला सम आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आपको एपी का mth टर्म दे रखा है। सो लेट मी सपोज बच्चों एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। मैंने माना कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और कॉमन डिफरेंस डी। सो इसका जो mth टर्म होगा बच्चों वो होगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी होगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। और इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है बच्चों, 1/m। अच्छा यहाँ एक बात लिख लीजिएगा बच्चों कि m इज नॉट इक्वल टू n। ये प्रॉब्लम में मेंशन है कि m इज नॉट इक्वल टू n, और ये क्यों है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। mth टर्म की वैल्यू बच्चों a प्लस एम माइनस वन इंटू डी होगी, और वो है 1/n गिवन है। चलिए साहब, और इससे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूं, और nth टर्म की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसकी वैल्यू क्या है 1/m। इससे मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो आपके पास में इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस सो दैट यू पीपल विल कम टू नो द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी लाइक व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस problem. So how to go that बच्चों, go for that you simply do one thing बच्चों, you subtract first equation from second one, or you can reverse, you can also go for the reverse, that is subtracting second equation from the first second one, from the subtracting second equation from the first one. So here this is second equation, here it is first equation, and this is my second equation, this is my first equation. I'm going to subtract this equation, that is first from second one. What I do, cancelling a and a, I cancel them, and in the next step I get n minus 1 into d minus m minus 1 into d. And what about RHS बच्चों, RHS you can see is 1/m minus 1/n. ये आपके पास में आया। और अब अगला काम क्या कर सकते हो बच्चों, आप इसमें से d को कॉमन निकालो। d को कॉमन निकालोगे तो n माइनस वन माइनस एम माइनस वन आ जाएगा। RHS पर एलसीएम लेने का बाबा, n माइनस एम अपॉन एन एम, ये आपके पास में आएगा। और क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, इसमें से d तो ये रहा। अच्छा यहाँ n माइनस एम माइनस वन से प्लस वन तो क्या हो रहा है भाई, कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, n माइनस एम अपॉन एम एन, यही कुछ आया बच्चों। माइनस वन से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब अगली स्टेप में बच्चों मैं n माइनस एम से n माइनस एम को कैंसिल कर दूंगा, जिससे d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/mn। ये आपके पास में d की वैल्यू आ गई है। और ये जो d की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, अब आप एक काम करिए, आप इस वैल्यू ऑफ d को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जिसमें आपकी मर्जी है। सो मैं इस d की वैल्यू को बच्चों फर्स्ट में रख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड में रख देता हूँ। चलिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और d चमान 1/mn आहे भाई, और RHS पर 1/m आहे। a प्लस n/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। अभी क्या होगा बच्चों, n से n कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1/m माइनस 1/mn और इज इक्वल टू 1/m, और 1/m से 1/m बोले तो कैंसिल। और इस तरीके से बच्चों a की वैल्यू 1/mn आ रही है। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/mn आ गई। आराम से वेरीफाई कर लीजिए, a की वैल्यू भी वही चाह रही है बाबा जो d की वैल्यू आ रही है। सो आपको कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेने का है बच्चों, आपको वैल्यू बतानी है mn टर्म की। सो mn टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, सिंपल। आपको इस टर्म की वैल्यू बतानी। देखिए जब आपके पास में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है बच्चों a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है बच्चों आपके पास में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है।
जब आपको mth टर्म निकालना था तो आपने t n की जगह m रखा। भाई ये nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का, और आपको जब mth टर्म निकालना है तो आपने m रख दिया, जब आपको nth टर्म निकालना है तो आपने n रख दिया, जब आपको mnth टर्म निकालना है तो आपने mn रख दिया। जैसे पिछली प्रॉब्लम में 5th टर्म दे रखा था, सो एट द प्लेस ऑफ n आपने 5 रखा। जब आपको 15th टर्म दे रखा था तो n की जगह 15 रखा। जब आपको 5th टर्म निकालना तो n की जगह 25 रखा। अब चूंकि वहाँ नंबर्स रखने थे इसलिए काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब हम ये ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे पैरामीटर्स रखने जाते हैं तो कुछ लोग थोड़े थोड़े भयभीत हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या करूं। यहां n का काम कौन करेगा बच्चों? mn। और a और d दोनों की वैल्यू रखिए। a का मान बच्चों आपके पास में 1/mn है, ये mn है, -1 है, और d की वैल्यू भी बच्चों 1/mn है। अभी ये आपके पास में 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, ये दोनों आपस में कैंसल और mn से mn भी कैंसल, सो दैट कितना आया? 1। mnth टर्म की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। प्रश्न बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, इनफैक्ट कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें है नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। चलिए एक और प्रॉब्लम कीजिएगा बच्चों। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों आपको ये गिवन है कि एपी का pth टर्म, किसी एपी में बच्चों pth टर्म की वैल्यू है a। किसी एपी में pth टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों? a। उसी एपी में बच्चों qth टर्म की वैल्यू है b और rth टर्म की वैल्यू है बच्चों c। आपसे ये कहा है कि किसी एपी में pth टर्म की वैल्यू a है, qth टर्म की वैल्यू b है और rth टर्म की वैल्यू क्या बच्चों? c है। आपको प्रूव करना है a इंटू एक सेकेंड, a इंटू क्यू माइनस r प्लस b इंटू r माइनस p प्लस c इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए आपको किसी एपी का pth टर्म क्या दे रखा है बच्चों? a, qth टर्म b और rth टर्म c। उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, मैं इस प्रॉब्लम पर आऊं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। हमने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करी तो पिछली वाली प्रॉब्लम की बात बता रहा हूं आपको, उसमें आपको गिवन था बच्चों m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली m n के बराबर नहीं है तो m माइनस n 0 नहीं होगा। भाई अगर कोई दो नंबर्स इक्वल नहीं है तो उनका डिफरेंस 0 नहीं है, या आप n को LHS पर ले आए तो माइनस हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं है। और चूंकि ये डिफरेंस 0 नहीं है इसीलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कैंसिल नहीं कर पाते। कोई भी दो नंबर्स को आप इक्वल में जब होते हैं तब आप उनको तभी कैंसिल कर पाते हो बच्चों जब वो 0 नहीं हो। मेरे कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए मैं आपसे बोलूं कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। सो आप 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं और एक्स इक्वल टू 3 बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि 2 से 2 को कैंसिल करना मैथमेटिकली कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, लेकिन बच्चों कभी भी आप अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 0 इंटू 3 होता और यहाँ 0 इंटू एक्स होता, सपोज कीजिए एक मिनट के लिए 0 इंटू 3 होता और 0 इंटू एक्स होता, तो आप 0 से 0 कैंसिल कर देते और आप बोलते हैं एक्स इक्वल टू 3। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मैंने लिखा है बच्चों ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में गलत कहलाता है। कभी भी आप 0 को 0 से कैंसिल नहीं करते, 0 को 0 से कैंसिल नहीं करते। कैंसिल तभी किया जाता है जब वो 0 ना हो। भाई 0 को 0 से कैंसिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0/0 बच्चों डिफाइन नहीं होता। 2/2 डिफाइन था, भाई आपने 2 को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक तरीके से आप यूं कहें आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, या यूं कहें कि 2 को आपने डिवाइड कर दिया, चल गया, हो गया। लेकिन अगर आप 0 को 0 से कैंसिल कर रहे हैं मतलब आप 0/0 लिख रहे हैं, जो कि 0/0 बच्चों डिफाइन नहीं होता, इसलिए कभी भी उसको कैंसिल नहीं किया जाता। कभी भी 0 को 0 से कैंसिल नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम पता नहीं कैसे क्या कर लेते, लेकिन 0 को कभी भी 0 से कैंसिल नहीं किया जाता। और वही बात यहाँ पर आ रही है बच्चों की n माइनस m, चूंकि m n के इक्वल नहीं है इसलिए m माइनस n 0 नहीं है, और वो 0 नहीं है तो आप कैंसिल कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये 0 होता तो इन्हें कैंसिल करना एक बहुत बड़ा पाप हो जाता।
इसे कैंसिल करना एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है बच्चों। हालांकि जो है ये एक बड़ी छोटी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के तहत हम ये सारी बाबातें देखते हैं कि हम जीरो से जीरो को कभी कैंसिल नहीं करते हैं। एक बहुत बेसिक टूल है बच्चों मैथमेटिकल, कि कभी भी जीरो को मैथमेटिकल यूँ कहा जाए कि एक थ्योरम बोल दीजिए, या एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, साहब जीरो को जीरो से कभी कैंसिल नहीं करते। अगर जीरो को जीरो से कैंसिल कर पाते तो फिर तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको बच्चों, ये जीरो है, क्या जीरो बराबर जीरो है? दुनिया की कोई ताकत इसको बराबर करने से नहीं रोक सकती। अगर मैं इस नंबर को मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैथमेटिक्स इसको गलत कहेगा? भाई जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? जीरो। जीरो को 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? जीरो। सो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। भाई अभी भी ये जीरो है, अभी भी ये जीरो है। अभी आपने जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया, सो डैट कितना आ गया? 2 = 100। क्या ये पॉसिबल है कि किसी से 100 रुपीज़ लेने हैं, वो बोले चल 2 रुपये ले ले यार, काम कर ले, काम हिसाब किताब बराबर, क्योंकि 200 के बराबर ही है? ऐसा होता है? नहीं। किसी को 100 रुपीज़ देने, उसको बोलने चल 2 रुपये दे दे तो तेरे को बराबर हो जाएगा हिसाब, पर क्या ये होता है? नहीं। यही तो नंबर्स का खेल है बच्चों। जीरो बहुत काम की चीज़ है बच्चों। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। चलो भैया मैं गाने से हटता हूँ। अभी जीरो की बड़ी प्यारी महिमा है बच्चों। जीरो जीरो नहीं होता, जीरो बहुत बड़ा हीरो होता है। ये आप लोगों को मैथमेटिक्स में बहुतों बार देखने को मिलेगा। बट अभी मैं वापस से अपने काम की बात पर आ रहा हूँ बच्चों। जीरो को जीरो से कैंसिल नहीं किया जाता। अब चूंकि m n के बराबर नहीं है, इसलिए m - n 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए आप कैंसिल कर पाए। अदरवाइज अगर ये दोनों बराबर होते तो आप कैंसिल नहीं कर पाते, तब आपके सामने बड़ी विचित्र किस्म की स्थिति बन सकती थी बच्चों। पर चूंकि वो नहीं था, इसलिए आपने कैंसिल कर दिया। तो ये छोटा सा लॉजिक था, जानना जरूरी बच्चों। हालांकि हमें भविष्य में भी अभी ऐसे काफ़ी सारे सम्स मिलते रहेंगे, तब भी हम इस बारे में बात करते रहेंगे, बट अभी मेरे लिए बताना जरूरी था। एनीवेज, अब आपको ये प्रूव करना बच्चों, वीडियो को पॉज करके करो ना। चलिए, अभी आपको एपी का पीरियड टर्म ए दे रखा है। अब यहाँ पर क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आपको स्मॉल ए दे रखा है, सो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं काम करता हूँ बच्चों, मैं एक ऐसी एपी ले लेता हूँ जिसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है। मैं एक ऐसी एपी ले लेता हूँ बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म कैपिटल है और जिसका बच्चों कॉमन डिफरेंस, मैं एक ऐसी एपी लेता हूं जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस मैं कैपिटल डी मान लेता हूं, ताकि मेरे लिए काम करना थोड़ा सा सरल तो क्या दोनों केस में रहेगा, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी स्मॉल ए है, तो फिर वो स्मॉल ए मेरे माने हुए फर्स्ट टर्म स्मॉल ए को कंफ्यूज, कहीं ना कहीं मेरे को कंफ्यूजन आ जाएगा। कंफ्यूजन ना रहे तो अच्छा रहेगा। सो चलिए भैया, मैं अगर इस एपी का पीएथ टर्म निकालूं तो इसका पीएथ टर्म क्या होगा? a + p - 1 × d और इज इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल ए। इससे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। एपी का पीएथ टर्म ऑफ एपी a + p - 1 × d, जिसकी वैल्यू स्मॉल ए होगी, और क्यूथ टर्म जो है बच्चों वो होगा a + q - 1 × d, जिसकी वैल्यू होगी स्मॉल b। ये लीजिए, और इसी एपी का आरथ टर्म होगा a + r - 1 × d, जिसकी वैल्यू होगी स्मॉल c, और इसे मैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देता हूं। भाई एपी का पीएथ टर्म क्या? a + p - 1 × d। nth टर्म का फॉर्मूला ये है। सो जब pth टर्म लिखना है तो n की जगह पर p, जब qth टर्म लिखना है तो n की जगह पर q, और rth टर्म लिखना है तो n की जगह पर क्या r आएगा, लिख दिया है। आगे बढ़े। अब जो हमारा प्रूव करना भाई, मैं उसकी यहाँ पे आप ए कैपिटल ए और कैपिटल डी की वैल्यू अगर निकालो भी सही तो कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसके बगैर ही हो जाएगा। भाई अगर आप देखते हो जैसे पिछले दो सम्स में आपने करा कि आपने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाला, वो आप यहाँ पर निकालो, दिस इज इररिलेवेंट हियर। सो यू डू वन थिंग बच्चों, सिंपली आप एक काम करिए कि आप यहाँ पर जो है ए बी सी इन तीनों की जो वैल्यूज आई है बच्चों से यहाँ रखिए। तो जो हमको प्रूव करना है बच्चों, मैं उसकी LHS लेता हूँ और ए की जगह पर मैं क्या रखता हूँ बच्चों? ए की जगह पर मैं रखता हूँ a + p - 1 × d, ये लीजिए, इंटू क्या? q - r। फिर b की जगह पर क्या? a + q - 1 × d, और इसकी वैल्यू क्या बच्चों? r - p। और फिर क्या बच्चों? a + r - 1 × d, और फिर क्या बच्चों? p - q। एंड
ये आपके पास में LHS है। अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये लीजिए आपके पास में A इंटू क्यू माइनस आर, कैपिटल A इंटू क्यू माइनस आर प्लस P माइनस 1 इंटू डी इंटू बच्चों कितना Q माइनस आर। लाइक वाइज बच्चों कैपिटल A इंटू आर माइनस पी होगा, और इसी तरह से बच्चों Q माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या बच्चों R माइनस पी, और प्लस क्या बच्चों कैपिटल A इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्या बच्चों R माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या बच्चों P माइनस क्यू, यही कुछ बनेगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर जितने कैपिटल A वाले टर्म्स हैं यू पुट दम टुगेदर, कैपिटल A और कैपिटल A वाले टर्म्स को आप एक साथ रख दीजिए सो दैट A कॉमन भी आ जाएगा उससे। सो Q माइनस आर प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस क्यू। बच्चों आपके पास में आपने कैपिटल A इंटू क्यू माइनस आर, कैपिटल A इंटू आर माइनस पी और कैपिटल A इंटू पी माइनस क्यू को मैंने एक साथ में लिख दिया, और उसमें से कैपिटल A को कॉमन भी निकाल दिया साहब। अभी अगला क्या हो रहा है, अब ये जो है बच्चों इनमें से मैंने ये जो कैपिटल डी वाले टर्म्स है आई एम पुटिंग देम टुगेदर, तो मैं इनको एक साथ रखता हूँ, तो ये क्या आएगा बच्चों P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर क्या बच्चों Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और फिर क्या बच्चों R माइनस 1 इंटू क्या P माइनस क्यू, और यहाँ पर मेरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। भाई यहाँ पर कैपिटल A कॉमन निकाल दिया तो ये Q माइनस आर बचा, ये R माइनस पी बचा और वो P माइनस क्यू बचा, और यहाँ से कैपिटल D कॉमन निकाल दिया बच्चों तो ये P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ से Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और यहाँ से R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। होप बात खोपड़ी में अच्छी तरह से आ रही होगी। और ये कैपिटल A, और ये क्या होगा बच्चों, स्मॉल q से स्मॉल q, स्मॉल r से स्मॉल r और स्मॉल p से स्मॉल p कैंसिल होने के बाद यो कितना आएगी भैया, ये जीरो आएगी भैया। अब खे हो रहा है, इधर तो सब कैंसिल हो गए। अच्छा यहाँ पर कैपिटल डी, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब आपको जो है इनका आपस में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अरे P इंटू क्यू P इंटू आर पी आर माइनस 1 इंटू क्यू माइनस P माइनस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर बच्चों R इंटू क्यू, और बच्चों माइनस P इंटू क्यू माइनस R, और माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस, ये कुछ आ गया। अरे P इंटू क्यू P इंटू R 1 इंटू क्यू और 1 इंटू आर, ये होगा। फिर R इंटू क्यू R और P इंटू क्यू, फिर माइनस 1 इंटू आर, और ये, और वही काम मेरे को इधर भी करने का बाबा, R इंटू पी माइनस R इंटू क्यू माइनस P माइनस माइनस प्लस। ब्रैकेट क्लोज करना मेरा कर्तव्य बनता है और मैं अपने कर्तव्यों को जरूर निभाऊंगा भैया। मैं पी क्यू से माइनस पी क्यू को अगर कैंसिल करता हूं तो मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगना चाहिए, लगे तो लगे, मैं तो कैंसिल करूंगा, यस। और माइनस पी आर से प्लस पी आर कैंसल। अरे भाई ए इंटू बी बोलो या बी इंटू ए, बचपन से सुनते आ रहे हो सेम होता है, तो आज भी वही है ना बाबा, पी इंटू आर बोलो या आर इंटू पी। ऐसे ही भैया माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसल हो गए, माइनस आर से प्लस आर कैंसल हो गए, और आर क्यू से बच्चों माइनस आर क्यू कैंसल, और कुछ हो रहा है, यस यस यस, माइनस पी से प्लस पी फिर कैंसल हो रहा है। सो ये a इंटू जीरो तो बच्चों जीरो हो चुका, और d इंटू जीरो भी जीरो हो चुका। सो कुल मिलाकर क्या हो चुका बच्चों, जीरो। तो जीरो को आप नकार नहीं सकते, मैंने आपसे पहले भी कहा बच्चों कि जीरो बहुत बड़ा हीरो होता है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो खट से उसको तबाह कर देता है, जीरो कर देता है। सो यू कैन नॉट इग्नोर द पावर ऑफ जीरो भैया, कि अगर आप सोचो कि चलिए हम तो साहब जीरो को कैंसिल कर दें, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। एनीवेज मेरे ख्याल से ये यहाँ तक की सारी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न आप लिखिएगा बच्चों, इफ nth टर्म, एक सिंपल सी प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, इफ nth टर्म ऑफ फॉलोइंग प्रोग्रेशन, if nth term of following progressions are same। बच्चों आपके पास में if nth term of following progressions are same, then find
द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। आपको कोई दो प्रोग्रेशन दे रखी है, ये देख रहे हैं आप, इन दोनों का nth टर्म जो है बच्चों वो सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रोग्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा है बच्चों, दोनों ही प्रोग्रेशन का बच्चों nth टर्म सेम है। अब पहली वाली प्रोग्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका फर्स्ट टर्म 3 है और उसका कॉमन डिफरेंस बच्चों 7 है। पहली वाली प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस 7। और देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 10। और ऐसी दूसरी प्रोग्रेशन के बारे में बात करूं तो बच्चों a की वैल्यू 2 और कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों, ना a की वैल्यू 2 कहाँ है, a की वैल्यू तो 63 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है। भाई ये आपने फर्स्ट प्रोग्रेशन के लिए लिखा और ये आपने सेकंड प्रोग्रेशन के लिए लिखा। अब पहली प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो होगा बच्चों 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। पहली प्रोग्रेशन का जो कौन सा टर्म है बच्चों, nth टर्म, वो होगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरी प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो होगा बच्चों 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। पहली प्रोग्रेशन का nth टर्म ये है, दूसरी प्रोग्रेशन का nth टर्म ये है और ये दोनों इक्वल गिवन है। यही प्रॉब्लम में मेंशन है भाई, फर्स्ट प्रोग्रेशन का nth टर्म और सेकंड प्रोग्रेशन का nth टर्म दे आर सेम, यही कुछ होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। और दोनों क्या गिवन है बच्चों, आपको इक्वल, तो इक्वल कर दिए। आपको उस टर्म की वैल्यू बतानी, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो है इस 7 इंटू एन माइनस 1 को आप इधर रखिए, 2 इंटू एन माइनस 1 को आप RHS वाले को इधर ले आइए और ये 63 माइनस 3 ये आ गया। अभी आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, भाई ये आपको गिवन था कि दोनों के nth टर्म्स की वैल्यू सेम है। अभी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इंटू एन, 7n माइनस 7 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस, और 63 माइनस 3 यानी 60 होगा। सो ये क्या होगा बच्चों, 7n माइनस 2 मतलब 5n, और ये कितना होगा बच्चों माइनस 5, और इज इक्वल टू कितना बच्चों 60। सो 5n इज इक्वल टू बच्चों 5 प्लस 60 जो कि 65 होता, आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों। n की वैल्यू मेरे ख्याल से 13 आ रही है बच्चों। पहली वाली प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। दूसरी वाली प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 63 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। आपको बोला है कि दोनों प्रोग्रेशन का nth टर्म सेम है, इक्वल कर दिए, और इस तरीके से n की वैल्यू क्या आ गई 13। मतलब अगर मैं इन दोनों प्रोग्रेशंस को एक्सटेंड करूंगा तो दोनों का जो 13th टर्म आएगा, फर्स्ट प्रोग्रेशन का जो 13th टर्म होगा और सेकंड प्रोग्रेशन का जो 13th टर्म होगा, वो दोनों क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, इक्वल होंगे 13 टर्म दोनों के इक्वल होंगे। अभी आपसे मेरे से ये नहीं पूछा कि कौन से नंबर का टर्म इक्वल होगा, आपसे ये पूछा उस टर्म की वैल्यू बताओ। तो 13th टर्म निकालिए। 13 टर्म अगर आप पहली वाली प्रोग्रेशन का निकालते हैं तो पहली वाली प्रोग्रेशन का क्या होगा बच्चों, 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7, 84 प्लस 3 यानी 87। और अगर आप ऐसे ही सेकेंड वाली का निकालते हैं तो 63 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 2 मतलब 12 2 जा 24 प्लस 63 अगेन 87। यू कैन सी वो जो है टर्म उसकी वैल्यू होगी 87 और वो 13th नंबर का टर्म है जो दोनों में बच्चों सेम है। होप आपको ये बात समझ में आई है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हमें अगला प्रॉब्लम जो गिवन है बच्चों, वो गिवन है, एक सेकंड, आपको ये एक प्रॉब्लम है बच्चों 1 4 7 इस तरह से 361। ये लीजिए साहब 1 4 7, या उससे भी पहले एक सेकंड, हाँ चलिए ये एक प्रोग्रेशन लिख लीजिए, आप लिख लिया आप लोगों ने। फाइंड 10th टर्म फ्रॉम एंड इन फॉलोइंग प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन में 10th टर्म फ्रॉम द एंड आपको बतानी है बच्चों। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए ये एक प्रोग्रेशन है, और वो कौन सी प्रोग्रेशन है, सबसे पहले आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि वो AP है भी सही कि नहीं। भाई इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, मतलब हर बार आप 3 ऐड करते जा रहे हो, अगला टर्म आता जा रहा है।
हर बार आप 3 ऐड करते जा रहे हो, नेक्स्ट टर्म आते जा रहा है, यही पिक्चर बन रही है। और आपको इस बार 10th टर्म पूछा है, पर वो कहां से पूछा है? एंड से, लास्ट से, ना कि बिगिनिंग से। हम लोग ये जो फार्मूला लिखते आ रहे हैं बच्चों अभी तक, कौन सा? nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑब्वियसली ये फार्मूला हम कहां से लिखते आ रहे हैं? बिगिनिंग से। हम लोग जो ये फार्मूला लिखते आ रहे हैं बच्चों, ये कहां से लिखते हुए आ रहे हैं? बिगिनिंग से। और हमसे बिगिनिंग से नहीं पूछा, इस बार हमसे एंड से पूछा है। तो कैसे काम कर सकते हैं, जरा दिमाग लगाइए बच्चों। ये जो प्रोग्रेशन है, इसका लास्ट से मुझे 10th टर्म निकालना है। मेरे पास में इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले एक तरीका मैं बताता हूं आपको बच्चों, एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप पहले इस प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कीजिए। और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 3 है, और लास्ट टर्म जो an है वो कितना बच्चों? 361। लास्ट टर्म को हम लोग l से भी रिप्रेजेंट किया करते हैं, स्मॉल l से। लास्ट टर्म है ये। So how many terms are there? an is equals to a plus n minus 1 into d। अब an की वैल्यू कितनी? 361। a कितना? 1। n मैंने मालूम कोड़ी, d भैया 3 है। यहाँ से ये देखिए ये 360 आ जाएगा 1 को माइनस करने पर, और ये n माइनस 1 इंटू 3 121। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बच्चों? 121 टर्म्स आ रहे हैं। टोटली यहाँ पर कुल मिलाकर 121 टर्म्स हैं। पर उन्होंने आपसे क्या पूछा है बच्चों? उन्होंने आपसे पूछा है कि लास्ट से 10th टर्म बताइए। सो अब दिमाग लगाइए बच्चों, लास्ट से 10th टर्म क्या होगा? थोड़ा सा ये सोचिए। और उसके लिए हम कैसे करते हैं? टोटली कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 121। तो जरा दिमाग लगाइएगा बच्चों, जरा समझिएगा। 121 से पहले वाला जो टर्म है वो कौन सा होगा? ये 121st टर्म है। उससे पहले वाला 120, उससे पहले वाला 119, उससे पहले वाला 118, उससे पहले वाला 117, उससे पहले वाला 116, उससे पहले वाला 115, उससे पहले वाला 114, उससे पहले वाला 113, उससे पहले वाला 112, और उससे भी पहले वाला 111 होगा। अब लास्ट से 10th टर्म, तो ये लास्ट से कौन सा टर्म है बच्चों? फर्स्ट। ये लास्ट से सेकंड, ये लास्ट से थर्ड, ये लास्ट से फोर्थ, ये लास्ट से फिफ्थ, ये लास्ट से सिक्स, ये लास्ट से 7, ये लास्ट से 8, ये लास्ट से 9, और ये लास्ट से बच्चों 10। जो लास्ट से 10th टर्म आपको नजर आ रहा है बच्चों, वो बिगिनिंग से 112th टर्म है। जो लास्ट से 10th टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा बच्चों? 112th टर्म। क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। ये कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने इसमें। लास्ट से 10th टर्म, बिगिनिंग से बच्चों 112th टर्म है। ये बहुत सरलता से नजर आ रहा है। सरलता को लाने के लिए थोड़ी सी मुझे मेहनत जरूर करना पड़ी। कई लोग डायरेक्टली बोल देते हैं, अरे यार 121st टर्म लास्ट है, तो लास्ट से 10th टर्म 111 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, उससे 10 कम कर दो। 10 कम नहीं करना आपको, वो खुद पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप इस तरह से फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं भैया कि ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये अकल लगाते हैं, यार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए 121, ठीक है। अब लास्ट से 10th टर्म कौन सा होगा? टोटल 121 टर्म्स है यार, तो लास्ट से 10th टर्म मतलब उससे 10 कम कर दो, उससे 10 कम कर दो तो 111, 111th टर्म होगा, 111st टर्म। कुछ लोग शायद ये लॉजिक लगाएंगे, लेकिन जरा दिमाग लगाइए। आप लास्ट से 10th टर्म आपके सामने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 10th। सो लास्ट से जो 10th टर्म है बच्चों, वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म है? वो बिगिनिंग से बच्चों 112th टर्म है। सो आपको बिगिनिंग से 112th टर्म निकालना है, और वो होगा बच्चों a प्लस 112 माइनस 1 इंटू डी। और a की वैल्यू कितनी बच्चों? a की वैल्यू है 1 प्लस ये 111, और d की वैल्यू कितनी बच्चों? d की वैल्यू 333। सो दिस बिकम्स बच्चों 334 आ रहा, होप सही है। तो लास्ट से जो 10th टर्म होगा बच्चों, उसकी वैल्यू होगी 334। मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। बड़ा काम तो नहीं किया था मैंने, सिंपल था, इस तरह से हो जाएगा। वैसे मैं आपको बच्चों इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी दे सकता हूं। डायरेक्ट क्या? nth टर्म फ्रॉम
एंड बच्चों यदि मुझे एंड से अंत से मुझे अगर nth टर्म निकालना है, एंड से मुझे अगर nth टर्म निकालना है तो उससे मैं tn डैश लिख लेता हूं। मैं बिगिनिंग से जो होता है उसको tn लिखता हूं। तो इसका जो फार्मूला मेरे पास में होगा बच्चों, इसका जो मेरे पास में फार्मूला होगा, उसके लिए फार्मूला क्या लगाऊंगा बच्चों, मैं a प्लस एक सेकंड m प्लस n माइनस 1, a प्लस m, एक मिनट a प्लस m माइनस n प्लस 1 इंटू डी। ये आपके पास में डायरेक्ट फार्मूला आ चुका है बच्चों, a प्लस m माइनस n प्लस 1 इंटू डी। अब बोलोगे m क्या है? सो m क्या है बच्चों, यहां पर m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। m स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे? जैसे यहां पर ये आया n है, आया n है क्योंकि अपन यहाँ पर n लिख रहे थे, अदरवाइज ये एक्चुअली जो वैल्यू आई है ये वैल्यू ही किसके बराबर आई है, m के। भाई ये हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर हेयर 121। हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर, 121। यही आ रहा है, वही मेरे को वहां पे रखने का है। मेरे को लास्ट से 10th टर्म निकालने का है। तो बिगिनिंग टर्म कौन सा बच्चों, 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों 121 माइनस n की वैल्यू बच्चों 10। भाई आपको लास्ट से 10th टर्म बताना है तो n की जगह पर आपने 10 रखा, a की जगह पर 1 रखा, m की जगह पर 121 माइनस 1 प्लस 1, ये इंटू 3 आप सॉल्व कर लीजिए। वही आ रहा है बच्चों आपके पास, आप सॉल्व करके देखिए। एक मिनट यहाँ पर 1 नहीं आएगा बच्चों, ये 1 नहीं आएगा, इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिएगा। ये 1 नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर इंटू 3, तो ये लीजिए, ये आपके पास में डायरेक्ट फार्मूला आ गया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट फार्मूला, इससे आपका काम हो जाएगा। मैंने सही करा है? यस, अब तो सही करा बच्चों। सो ये लास्ट से आपके पास में कौन सा टर्म आ गया, 10th टर्म। मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ, चलिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। आपको गिवन है बच्चों 1, 5, 9, 13 और ये लीजिए साहब 456। इज इट करेक्ट? नो, 466। ये लीजिए बच्चों, आपको इसमें एंड से आपको 5th टर्म बताना है। चलिए सिंपल, एंड से 5th टर्म आपको बताना है, या फिर एक काम कीजिए, चलिए एंड से 20th टर्म बताना है आपको। एंड से 20th टर्म निकालिए आप। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप एक बार, यार मैंने ये जो लिखा ना थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिएगा बच्चों, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये कीजिएगा कि 467 है लास्ट टर्म। अब आप करिएगा, लास्ट से 20th टर्म आपको बताना है। अब आप लास्ट से 20th टर्म कैसे निकालेंगे, जरा दिमाग लगाइए। पहले नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4 और लास्ट टर्म जिसे हम लोग an या l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना है, 467। सो अव्वल दर्जे पर आप टर्म्स निकालिए बच्चों 467, और ये a प्लस n माइनस 1, n मुझे मालूम करना है, और d की वैल्यू 4 है, ये 466 हो जाएगी। 466 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, और इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये कितना आएगा, एक सेकंड, यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 1, और 466 भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा यार, एक सेकंड, ये 1, ये 26 बच रहा है। तो यार ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाले वाला काम हो रहा है। मैंने वो सही किया था मेरे ख्याल से यार, 465 जो पहले मैंने लिखा था, शायद 465 जो मैंने लिखा था वो मेरे ख्याल से सही किया था। इसे 465 कीजिएगा बच्चों, 465 कीजिएगा। तो 465 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 464 मतलब 1, एक सेकेंड, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 1,
फिर ये 1 और ये फिर बच्चों 6, 116। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 117। हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर? 117। आई अगेन वेरीफाई। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 4 है, और लास्ट टर्म जो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है? 465। सो आपने रखा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपके पास में n आ गया कितना? 117। और एक्चुअली यहाँ n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और इस फार्मूले में मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? m से। सो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए। होप ये मेरा कैलकुलेशन सही है बच्चों। 116, यस। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतने आ गए। अब आपको लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है? 20th टर्म। तो 20th टर्म का फार्मूला आप लगाएंगे तो इस तरह से, लास्ट से 20th टर्म मतलब a की वैल्यू कितनी? 1 प्लस m कितना? 117 माइनस n की वैल्यू 20 और d की वैल्यू बच्चों 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन सो दैट यू पीपल विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ 20th टर्म। आ जाएगी ये आपके पास में बच्चों 20th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। होप आपको ये बात समझ में आई है। 97 इंटू 4 प्लस 1 कर लेंगे। सो दिस इज वन वे बच्चों इसको करने का, वरना फिर वही खोपड़ी लगानी पड़ेगी बच्चों मुझको। आप दिमाग लगाइए जैसे आपने पिछली बार किया, बिल्कुल वैसे ही आप काम कीजिए कि सर यहाँ पर एक सेकंड, टोटल 117 टर्म है। सो 117 टर्म, उससे पहले 116 टर्म, उससे पहले 115 टर्म, और इस तरीके से 107 टर्म, फिर 106 टर्म, और फिर 105th टर्म, और इसी तरह से बच्चों मेरे पास में यहाँ पर 98 टर्म, 97 टर्म, 96 टर्म वगैरह वगैरह। अब जरा आप दिमाग लगाएंगे बच्चों इसी तरह का जैसा पिछली बार लगाया था, तो आप बोलेंगे कि ये आपके पास में फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास में सेकंड टर्म है, ये आपके पास में थर्ड टर्म है। सो ये आपके पास में बच्चों जरा आराम से गौर कीजिए, ये 11 टर्म आ रहा है, ये 11 टर्म आएगा। आप बहुत आराम से देखिए क्योंकि 108 टर्म जो होगा बच्चों वो 10th होगा, फिर ये 11th होगा, और फिर ये आपके पास में 12th होगा, और इसी तरह से बच्चों ये जो आपके पास में आएगा दिस विल बी 20th टर्म। मतलब बिगिनिंग से कौन सा बच्चों? 98 टर्म। या तो आप ये ऐसी कुछ लॉजिक लगाइए कि यार लास्ट से 20th टर्म बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, लास्ट से 20th टर्म बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। तो लास्ट से 20th टर्म जो आ रहा है बच्चों वो बिगिनिंग से 98 टर्म आ रहा है। सो उस लॉजिक का अगर मैं उपयोग करता हूं तो मैं क्या बोलूँगा सर कि मैं nth टर्म जो होगा वो a प्लस n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी? n माइनस 1 इंटू डी ये लगाता हूँ। अब a की वैल्यू 1 है, n बच्चों 98 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। आप इससे सॉल्व कर लीजिए, उससे सॉल्व कर लीजिए, आंसर दोनों से सेम आ रहा है, दोनों से सेम आ रहा है। सो या तो ये आपके पास में एक रेडीमेड फार्मूला है या फिर ये लॉजिक है। आपको जो दोनों में से बेहतर नजर आता है आप उस लॉजिक का उपयोग कर लीजिए, उस तरीके का यूज कर लीजिए। एक सिंपल सी मैं एक बात बताऊं बच्चों आपको, nth टर्म फ्रॉम एंड, जो एंड से nth टर्म है आप देख सकते हैं, दैट विल बी एक्चुअली m माइनस n प्लस 1th टर्म, दैट इज m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा बच्चों? ये बिगिनिंग से बच्चों m माइनस n प्लस 1th टर्म होगा। जो लास्ट से nth टर्म है वो बिगिनिंग से m माइनस n प्लस 1th टर्म है, और वही लॉजिक अपना रहा हूं मैं। आप देखो ना यहां पर लास्ट से 20th टर्म, अगर मैं जैसे बोलूं लास्ट से 20th टर्म, तो बिगिनिंग से कौन सा होगा? बिगिनिंग से होगा वो m मतलब 117 माइनस n प्लस 1 मतलब क्या? 98 टर्म। वही लिखा आपने यहां पर, देखिए nth टर्म फ्रॉम दी एंड, बिगिनिंग से बच्चों m माइनस n प्लस 1 टर्म है। वही लॉजिक लगा रहा हूं मैं। m मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस n मतलब जो आपको निकालना है, प्लस 1। 98 टर्म आया। पिछले सम में भी आप देख लीजिए, पिछले सम में भी मैं यही लॉजिक अपनाता हूं बच्चों। m की वैल्यू 121 थी, माइनस मुझे 10th टर्म निकालना था, प्लस 1, यानी कौन सा टर्म आया बच्चों? 111th टर्म। आपने वही किया था आपने, मैं मिटा चुका हूं, आपकी कॉपी में देखिए आप, 111th ही आया था, 111th ना, एक मिनट, 112th सॉरी, किया हमने वहां पर सही था, यहां मैंने गलत दिखा है। ये लीजिए, यही आया था,
बिगिनिंग से जो सॉरी लास्ट से जो nth टर्म होता है बच्चों, लास्ट से जो nth टर्म होता है वो बिगिनिंग से बच्चों m माइनस n प्लस 1th टर्म होता है। व्हाट इज द टर्म जो बिगिनिंग से कौन सा है, सॉरी लास्ट से कौन सा है, nth। लास्ट से जो nth टर्म है वो बिगिनिंग से m माइनस n प्लस 1th टर्म है बच्चों, वही आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर बार। और उसी आधार पर तो ये फार्मूला बना है, कैसे मैं वो भी बताता हूं। देखिए उसी बेसिस पर मेरे पास में ये जो आइडेंटिटी बनकर आई है, ये आइडेंटिटी उसी बेस पर बनकर आई है। कैसे बनकर आ गई है बच्चों कि अगर मैं m भाई बिगिनिंग से m माइनस n प्लस 1 टर्म लिखूं तो वो क्या होगा, वो होगा बच्चों a प्लस, अब यहाँ पर m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल बच्चों, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, वही लिखा है। यहाँ n का काम कौन करेगा, n का काम कौन करेगा, m माइनस n प्लस 1। सो फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1, और n का काम ये कर रहा है, वही फार्मूला बन रहा है बच्चों अपने पास में। सो इन अदर वे यू कैन गो इट, इन अदर वेज। सो बच्चों अगर मुझे लास्ट से कोई टर्म पूछना है कि लास्ट से 5th टर्म बताइए, लास्ट से 10th टर्म बताइए, लास्ट से 28th टर्म बताइए, नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल काम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं ये लॉजिक अपना सकता हूँ बच्चों कि बिगिनिंग से मुझे जो nth टर्म, लास्ट से जो nth टर्म निकालना है वो बिगिनिंग से क्या होगा, m माइनस n प्लस 1 टर्म, ये जो लिखा है आप उस बेसिस पर, ये डायरेक्ट पका पकाया ये फार्मूला है। तो ये सिंपल तरीका था। अब मैं इससे और सिंपल तरीका बताता हूँ। ऑफ कोर्स पहला तरीका तो आप ऐसे सिमेट्री बिठाइए, ऐसे एनालॉजी लगा दीजिए। दूसरा तरीका आपके पास में डायरेक्ट पका पका फार्मूला, और जब यहाँ पर n की जगह m माइनस n प्लस 1 रख देंगे तो डायरेक्ट भी आपके पास आ जाएगा ये तरीका। लेकिन अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे आसान है। उस तरीके से कुछ लोगों ने करा भी होगा इस प्रॉब्लम को, पर पहले ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी कुछ लिखा हुआ है। अभी देखिए एक आसान तरीका क्या बच्चों, ये आप देखिए, आपको इसमें लास्ट से कौन सा टर्म पूछा था, 10th टर्म। तो ये जो प्रोग्रेशन है बच्चों, ये जो प्रोग्रेशन है, इसी प्रोग्रेशन को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो कैसी होगी बच्चों, 361, 358, 355 वगैरह वगैरह। अरे भाई आप अगर इस प्रोग्रेशन को देखें, इस एपी को देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है। बाय द एडिशन ऑफ 3 इन द एनी टर्म यू गेट द नेक्स्ट टर्म। सो इफ यू गो इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर आप उसकी पलटी मार दो तो यही प्रोग्रेशन बनेगी। आपको जहां राइट में जाने पर 3 ऐड करना पड़ा था, लेफ्ट में जाने पर बच्चों वही आपको -3 करना पड़ेगा। आपको इस प्रोग्रेशन का 10th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, मतलब इस प्रोग्रेशन का 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पूछा है। भाई आप ऐसे जा रहे हो ना, तो आप जब ऐसे जा रहे हो तो एपी है, तो लेफ्ट में आने पर भी एपी होगी। सिर्फ अंतर इतना होगा कि राइट वर्ड जाने पर जहां आप 3 को ऐड कर करके ला रहे थे, लेफ्ट वर्ड आने पर बच्चों आप उसी 3 को माइनस करते करते लाओगे। राइट वर्ड जाने पर जिस 3 को आप ऐड करते हुए ला रहे थे, लेफ्ट में आने पर बच्चा उसी 3 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। यहां आप क्या करोगे बच्चों, माइनस करोगे। तो चलिए माइनस करेंगे। सो यहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी बच्चों, 361, कितनी, 361। और यहां डी की वैल्यू कितनी, -3। और आपको 10th टर्म निकालना है, ये लीजिए फर्स्ट टर्म इतना, 10th टर्म ये इंटू -3। आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 361 में से 9 3 27 जाएंगे, सिंपली 334 आएगा, जो थोड़ी देर पहले आपका आया था। एक झटके में काम हो गया। कहाँ इतना लंबा जा रहे थे कि यार लास्ट से 10th टर्म जो होगा वो बिगिनिंग से 98 टर्म होगा, अभी जो लॉजिक 112 टर्म होगा, लास्ट से जो 28 टर्म होगा वो बिगिनिंग से 98 टर्म होगा। वो सारा लॉजिक, वो फार्मूला सब साइड पर रखिए, कोई काम का नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप राइट में जा रहे हैं तो वो एपी है, तो लेफ्ट में आने पर भी 3 ओपी वो एपी ही होगी। बस अंतर इतना कि राइट में जाने पर 3 को ऐड करने से बन रही थी, लेफ्ट में आने पर बच्चों 3 को माइनस करने से बनेगी। सिंपल लॉजिक है। दूसरी बात, आपने इस तरह से कर लिया, वही तरीका आप इसमें इस प्रॉब्लम में भी आप कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ फिर से बच्चों कि कुछ लोगों ने वीडियो को रोककर इसी तरीके से शायद किया भी होगा। कोई बहुत बड़ी बात आपको मैंने नहीं बताई। बहुत लोग इस बात को सोच लेते हैं, पर जो नहीं सोच पाते उन्हें सोचवाना मुझे जरूरी है भैया। अगली ये प्रॉब्लम जैसे, तो अब आप इसके पास में देखें अगर, तो ये राइट में जाने पर 4 ऐड करने से बन रही है, तो लेफ्ट में आने से बच्चों 4 को माइनस करने से बनेगी। तो 461
आपके पास में 457 लाइकवाइज। भाई जब राइट में गए तो 4 को ऐड करते गए, तो लेफ्ट में जाएंगे तो 4 को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। माइनस कर देते हैं। सो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए की वैल्यू 465 और डी की वैल्यू बच्चों -4। ए की वैल्यू आएगी 465 और डी की वैल्यू -4 आएगी। तो सॉरी आपको कौन सा टर्म बताना है, 20th। तो 20th टर्म क्या होगा बच्चों, 465 प्लस 20 -1 इंटू -4। आप इसे भी वेरीफाई कर लीजिए बच्चों, आंसर डिट्टो दोनों तरीकों से सेम आएगा जैसा पिछली बार आया था बच्चों। यहाँ पर भी वही 465 में से 19 2 ज़ा 30 2 ज़ा 76, वही आंसर आएगा जो पिछली बार आया था। बहुत आराम से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तरीका मेरे ख्याल से रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है बच्चों, बजाय कि पिछले तरीके के। ये तरीका मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। तो हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लास्ट से हमको टर्म निकालना है, तो हम उल्टी एपी चल लेते हैं। अगर ऐसे डी ऐड कर रहे थे तो उधर से आपको क्या करने का बच्चों, डी को माइनस करना है। आपका काम बड़ी सरलता से, सुलभता से, आसानी से हो जाएगा। चलिए हम जो है अब अगला काम करें बच्चों। इसी पर बेस्ड मैं एक और लॉजिक आपको बताता हूं, पहले इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अभी यहां पर आपके पास में एक प्रोग्रेशन बच्चों, आपके पास में एक प्रोग्रेशन जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से कोई प्रोग्रेशन और चलती जा रही है बच्चों। यहाँ पर आपके पास में प्रोग्रेशन, और लास्ट टर्म क्या उसका, एल। लास्ट टर्म क्या बच्चों उसका, एल है। भाई ये ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और लास्ट टर्म उसका एल है। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे आप आखिरी तक जा रहे हो तो ये एल है। सो अगला इससे पिछला जो होगा बच्चों वो एल माइनस डी होगा। भाई अगर राइट में आप जा रहे हो तो डी ऐड कर रहे हो, तो लेफ्ट में आओगे तो डी को माइनस करोगे। सो यहाँ आप इसे एल माइनस 2d लिख दीजिए, इसे आप एल माइनस 3d लिख दीजिए। भाई आप जब राइट में जा रहे हो तो डी ऐड कर रहे हो, तो लेफ्ट में आओगे तो डी को माइनस करोगे। अब आप एक काम करो बच्चों, आप बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म जरा उठाओ, बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म उठाओ, वो क्या आएगा, एक सेकंड सॉरी, बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म यदि आप उठाते हो तो वो क्या आएगा, ए प्लस एल आएगा। भाई आपने बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म का एडिशन किया, आपको क्या मिला, ए प्लस एल। अब आप बिगिनिंग से सेकेंड टर्म और लास्ट से भी सेकेंड टर्म, इन दोनों का एडिशन करो, क्या आएगा, ए प्लस एल आएगा। आप ऐसे ही बच्चों बिगिनिंग से ए प्लस थर्ड टर्म और लास्ट से भी आप थर्ड टर्म लिखिए, ये भी क्या आएगा बच्चों, ये भी आएगा ए प्लस एल, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही बच्चों बिगिनिंग से फोर्थ टर्म और लास्ट से भी फोर्थ टर्म, ये क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर इससे क्या मालूम पड़ा मुझको, इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि बिगिनिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, बिगिनिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, देखिए ना, ये बिगिनिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, बिगिनिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, इन दोनों का सम लिखा, ये आया। बिगिनिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट का सम निकाला, ये आया। आपने बिगिनिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड का सम निकाला, ये आया। आपने बच्चों बिगिनिंग से फोर्थ, लास्ट से फोर्थ का सम निकाला, वो ये आया। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ साहब कि बिगिनिंग से जैसा टर्म लिया, लास्ट से भी अगर आपने वैसा ही टर्म लिया, तो इन दोनों के जो सम आएंगे बच्चों वो सेम आएंगे। बिगिनिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, बिगिनिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, बिगिनिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड, बिगिनिंग से फोर्थ, लास्ट से फोर्थ, सबके सम्स क्या आ रहे हैं बच्चों, सेम आ रहे हैं। और वो किसके बराबर आ रहे हैं, दे आर द सम्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म।
ये एक एपी की एक प्रॉपर्टी है बच्चों। एपी की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, अभी सिर्फ मैं इतनी सी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। क्या कि सम ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स इज सेम। दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म्स होते हैं बच्चों, उनकी वैल्यू सेम होती हैं। दोनों तरफ से जो इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। भैया आपने इधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, इधर से थर्ड, इधर से थर्ड, इधर से टेंथ, इधर से टेंथ, अगर इनकी वैल्यूज लेंगे बच्चों तो वो आपको क्या मिलेंगी? वो आपको सेम मिलेंगी। बिगिनिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट टर्म्स की वैल्यूज वही हैं जो बिगिनिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, बिगिनिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड, बिगिनिंग से फोर्थ, लास्ट से फोर्थ। कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं बच्चों की सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स इज सेम। और वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों? सारे सम सेम आ रहे हैं और वो किसके बराबर आ रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आ रहे हैं। तो यू नोट डाउन इनटू योर कॉपी बच्चों कि सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चों, इस पर हम लोग काफी अच्छी प्रॉब्लम्स भी कर पाएंगे, पर अभी के लिए इसको लिख के रख लीजिएगा बच्चों। चलिए, सो ये एक हमारे पास में अच्छी प्रॉपर्टी है बच्चों। एक और सिंपल सा सम लिखिएगा, एक और सिंपल सा सम लिखिएगा बच्चों। एक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है, ये लीजिए साहब, एक सेकंड जरा सोचना पड़ता है ना बच्चों मुझको भी कई बार। 2, 9, 16, 23 इस तरह से आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है और आपसे पूछा है इज 403 अ टर्म इन दिस प्रोग्रेशन। क्या इस टर्म में 403 आएगा? बताइए। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा पहले एक बार। आपसे पूछा है भैया कि क्या इसमें 403 आएगा। मान लेते हैं 403 इसमें आएगा, क्योंकि आप ये जो प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ये जो प्रोग्रेशन आप बना रहे हैं, इसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं भाई। पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। पर जब इस प्रोग्रेशन के तमाम नंबर्स को आप बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो भैया क्या उसमें 403 आएगा, वो मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं पहली बात तो ये देखूं बच्चों की ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस बच्चों इसका 7 है। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। अब आप यहां पर इसमें इसका nth टर्म 1 मिनट के लिए मान लीजिए बच्चों क्या है? 403। इसका nth टर्म मैंने क्या सपोज कर लिया बच्चों? 403। सो आप फार्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल टू कितना होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन की वैल्यू 403, ए की वैल्यू 2 और एन मुझे मालूम करना है। मैं मालूम करना चाहता हूं कि कौन से नंबर पे 403 आएगा और डी की वैल्यू बच्चों 7। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 401 भाई 403 में से 2 जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये इंटू 7। सो यहाँ से बच्चों 401 अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना आएगा? n माइनस 1। और जरा इसको सॉल्व कीजिए, 7 5 35 भाई n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49 और समवाट करीबन 3 आ जाएगा बच्चों। सो 57 माइनस 3 तकरीबन। सो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 58.3। n की वैल्यू 58.3 आ गई साहब। क्या n की वैल्यू 58.3 हो सकती है? यह सोचने वाली बात है बच्चों। कैन n बी 58.3? भाई आपके पास में कोई ऐसा टर्म हो सकता है जो 58th टर्म हो, आपके पास में कोई ऐसा टर्म हो सकता है जो 59th टर्म हो, लेकिन क्या कोई आपके पास में ऐसा टर्म हो सकता है जो 58.3 टर्म हो? नहीं हो सकता भाई। n तो टर्म की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है, टर्म की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मेरे पास में एक एपी है। सपोज कीजिए बच्चों मेरे पास में एक एपी है 13/3, 11/3, 9/3, 7/3. You can see this is an AP. This is an AP. Why? Because if you talk about difference of any two successive terms, you find it is 2/3. बच्चों आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, -2/3 आ रहा है। इन दोनों का निकालिए, -2/3 आ रहा है। इन दोनों का निकालिए, -2/3 आ रहा है। दैट इज पॉसिबल कि टर्म्स की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए। जैसे 13/3 4.33, 11/3 3.67,
ये तो 3 हो जाएगा, ये 2.33 हो जाएगा। सो द वैल्यूज ऑफ टर्म्स कैन बी फ्रैक्शनल। भाई बाई चांस हमने अभी तक जो एपी में सम्स करे उनमें अधिकतर इंटीग्रल वैल्यूज ही आ रही थी, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आ रही थी। लेकिन भाई कॉमन डिफरेंस कैन बी फ्रैक्शनल, फर्स्ट टर्म कैन बी फ्रैक्शनल, टर्म्स की जो वैल्यूज है दे कैन बी फ्रैक्शनल, बट हाउ यू कैन से कि यार n फ्रैक्शनल है। भाई टर्म 100 टर्म होता है, 100 फर्स्ट टर्म होता है, क्या 100.5th टर्म होता है? नहीं होता। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है। अगर इसी की जगह पर n की वैल्यू 58 आ जाती तो मैं बोलता बाबा पॉसिबल है। भाई अगर 58 आ जाती तो मैं बोलता हाँ यार 58th टर्म की वैल्यू 403 होगी। अगर मान लीजिए 59 आ जाती तो मैं बोलता अच्छा 59th टर्म की वैल्यू 403 होगी। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। तो मतलब ये वैल्यू तो n की पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू n की वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर इस सीरीज को मैं आगे लिखता जाऊंगा तो 403 इसमें कभी भी नहीं आएगा। मैं चेक कर सकता हूं बच्चों, चाहूँ तो मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते लिखते जाऊँ। मेरे ख्याल से ये प्रश्न समझ में आया होगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो 466 लिखा, फिर 467 लिखा, अभी पिछले वाले सब में तो वहाँ यही गलती हो रही थी कि मैं जो वो 467 लिख रहा था या 466 लिख रहा था वो उस प्रोग्रेशन में कभी आना ही नहीं था। वहाँ यही था एक्चुअली, अगर मैं 466 लेके सॉल्व करता या 467 लेके सॉल्व करता तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती, और मतलब ये था कि उस टर्म में 467 पॉसिबल ही नहीं था। तो वहाँ यही मिस्टेक हो रही थी, और जस्ट उसी मिस्टेक को हमने एक प्रॉब्लम का रूप दे दिया बच्चों कि जब आप टर्म्स लिख रहे हो तो टर्म की वैल्यू फ्रैक्शनल हो, नंबर डिफरेंस फ्रैक्शनल हो, वो पॉसिबल है। फर्स्ट टर्म फ्रैक्शनल हो वो पॉसिबल है, लेकिन जो नंबर टर्म है वो नंबर फ्रैक्शनल हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का कोई टर्म पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने भी उसको काफ़ी लंबे समय तक बता दिया आप लोगों को बच्चों। अगली प्रॉब्लम और हम लोग करते हैं बच्चों। हमें एक प्रोग्रेशन दे रखी है बच्चों, यहाँ पर 2, 7, 12, 17 वगैरह वगैरह बच्चों, और ये लीजिए साहब 357, ये एक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है। ये आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है बच्चों, और दूसरी प्रोग्रेशन आपको दे रखी है बच्चों 1, 4, 7, 10, और बच्चों कितना आपको दे रखा है 421। ये लीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन फॉलोइंग प्रोग्रेशंस। कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन फॉलोइंग प्रोग्रेशंस। बच्चों इन दोनों प्रोग्रेशंस में आपको कितने टर्म्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं आपको बताने हैं। वीडियो को रोक कर कीजिए, देखिए आपको बताना है बच्चों कि इन दोनों प्रोग्रेशंस में कितने टर्म्स कॉमन हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सम किया था बच्चों, हमको 2 प्रोग्रेशन दे रखी थी, उसमें यह बोल रखा था कि पहली सीरीज का nth टर्म दूसरी सीरीज के nth टर्म के बराबर है, बताओ वो टर्म की वैल्यू क्या होगी। अभी आप लोगों ने किया था 87 मेरे ख्याल से जिसका आंसर शायद आया था। तो वो एक अलग बात थी कि दोनों का पर्टिकुलर एक टर्म ऐसा था जो इक्वल हो गया था। अब यहाँ पर हमें यह बोला है कि इन दोनों एपीज में ऐसे कितने टर्म्स हैं जो कॉमन है। तो आप जरा देखिए इन दोनों से प्रोग्रेशन में पहला टर्म कौन सा कॉमन है बच्चों? 7 कॉमन है, देख सकते हैं आप बच्चों। यहाँ पर जो है इन दोनों प्रोग्रेशन का सबसे पहला जो टर्म कॉमन है वो है 7, उसके बाद में इसमें 12 आया, 17 आया, फिर बच्चों यहाँ पर 22 आएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो 10 के बाद में 13 आएगा, यहाँ पर बच्चों उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद में 19 आएगा, उसके बाद में बच्चों 22 आएगा। सो पहला जो टर्म यहाँ पर कॉमन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 7 के बाद में अगर मैं अगला टर्म इनमें देखूं तो वो कौन सा आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है 22 कॉमन आ रहा है। अब देखिए भाई मैं अगर पहली वाली प्रोग्रेशन को बहुत आराम से लिखूं तो 2, 7, 12, 17, 22, उसके बाद 25, उसके बाद में बच्चों 28, उसके बाद में बच्चों 31 ना, एक मिनट, 5 का डिफरेंस चला रहे हैं ना, 5 का डिफरेंस चला रहे हैं तो ये 27, ये 32, ये 37, ये 42, ये 47, ये 52 एंड लाइकवाइज इस तरह से, एंड द सीरीज इज एंडिंग at 357. And if I talk about second progression बच्चों, what I find, this is 1, this is 4, this is 7, this is 10, this is 13, this is 16,
this is 19, this is 22, this is 25, this is 28, this is 31, and this is 34, this is 37, this is 40, and this is 43, this is 46, and likewise. Hope I have done correct? Yes. Now what are the terms which are common to this progression? If the second series is extended up to 421, how many terms are common? So first of all we will have to mark those terms which are common. So ये देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है. So पहला नंबर जो इनमें कॉमन आया बच्चों वो 7 आया. पहला नंबर जो आया बच्चों कॉमन वो कौन आया? 7. अगला नंबर जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों वो इन दोनों में कौन सा आ रहा है? इन दोनों में जो अगला नंबर कॉमन आ रहा है बच्चों वो 22 है. ये लीजिए 22 इज कॉमन टू दिस टू सीरीज. और अगला नंबर अगर मैं और देखता हूं सो उसका अगला नंबर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 37. ये देखिए, ये देखिए 37. तो इस तरीके से पहला नंबर जो कॉमन आया वो 7 आया, दूसरा जो नंबर कॉमन आया वो 22 आया, तीसरा जो कॉमन नंबर आया वो 37 आया. इस तरीके से भाई ये जो दोनों प्रोग्रेशंस आपको दे रखी थी वो एपी दे रखी थी. और पहली एपी का फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 5 है. दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म बच्चों 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है. भाई पहली एपी का फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 5, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 3. यही है. और फर्स्ट एपी का लास्ट नंबर जो है वो बच्चों वो 357 है और सेकंड एपी का जो लास्ट नंबर है बच्चों वो 421 है. और इस तरीके से आप चलेंगे. अब आप देखिए इन दोनों सीरीज के कॉमन टर्म्स से जो आपने एपी बनाई उसका फर्स्ट टर्म, इन दोनों एपीज के कॉमन टर्म्स से जो आपने प्रोग्रेशन बनाई उसका फर्स्ट टर्म 7 है, अगला 22 है, अगला 37 है. बाय चांस फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोग्रेशन बनकर आई है ये भी एक एपी ही बनकर आई है. ये भी क्या बनकर आई है? एक एपी. और इस एपी का फर्स्ट टर्म बच्चों 7 है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 15 है. एक सिंपल से लॉजिक बताऊं बच्चों मैं आपको. अगर कोई दो एपीज आपको दे रखी हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों एपीज में कितने कॉमन टर्म्स होंगे तो आप उनके कॉमन टर्म्स को लेकर ऐसी कोई प्रोग्रेशन बनाएंगे. तयशुदा बात है बच्चों वो एक एपी ही आएगी. क्या आएगी? एपी. अगर कोई दो एपीज आपको दे रखी हैं और उनके कॉमन टर्म्स को लेकर आप कोई प्रोग्रेशन बनाते हो तो वो एक एपी ही बनकर आएगी. और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो बनने वाली एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इन दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 15. आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का कॉमन, ये जो नई वाली बनने वाली जो प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. आप बोल सकते हैं पर वो यहां लग गया. अदरवाइज मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए एक एपी होती, मान लीजिए ऐसी कोई एक एपी होती जिसका कॉमन डिफरेंस 3 होता और दूसरे का होता 6. सो उनके कॉमन टर्म्स को लेकर अगर आप कोई एपी बनाते, कोई दो एपीज आपको दे रखी होती, फर्ज कीजिए जिसकी पहली वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है, दूसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 6 है. सो उन दोनों के कॉमन टर्म्स को लेकर अगर आप कोई प्रोग्रेशन बनाते तो अवश्यम भावी रूप से वो एक एपी ही आती और उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं, इन दोनों का एलसीएम होता. क्योंकि आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालिए वो 18 आएगा और एलसीएम निकालिए वो 6 आएगा. सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ terms made by common terms from both the APs is actually LCM of these two common differences. तो वो ये प्रोग्रेशन बनकर आपके पास में आएगी बच्चों. वो ये वाली प्रोग्रेशन आपके पास में आएगी भैया. इस तरह की आपके पास में कॉमन डिफरेंस 15 आ जाएगा. बस आपको कुछ नहीं करना. ये तो मैंने 7, 22, 37 ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि अच्छा पहला डिफरेंस 7 आया, पहला कॉमन टर्म 7 आया, फिर 22 आया, फिर 37 आया. और मैं और लिखूंगा तो और आ जाएगा मेरे पास में बच्चों. पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया. अदरवाइज ओरली आप काम कर सकते हैं. आप तो फर्स्ट कॉमन टर्म निकाल लीजिए. फर्स्ट कॉमन टर्म निकालना बड़ा काम नहीं होता. आपको लिखा लिखाया मिल भी गया. अगर नहीं भी मिलता तो आप 2-3 टर्म्स देखते फर्स्ट कॉमन टर्म आ जाता.
आ जाता। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम आपको करना है कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा नई बनने वाली एपी का, वो इन दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम आएगा। डायरेक्ट कर दीजिए, आपको ए मालूम पड़ गया, डी मालूम पड़ गया। अब ए मालूम पड़ गया, डी मालूम पड़ गया, उस बेसिस पर आपकी नई एपी बन गई। अब पंगा ये है कि ये एपी आपको कहां तक चलानी है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि वो एपी कौन सी है, कॉमन टर्म्स वाली एपी कौन सी है। आपसे तो ये पूछा है कि उन कॉमन टर्म्स को लेकर जो प्रोग्रेशन बन रही है उसमें कितने टर्म्स हैं, कितने कॉमन टर्म्स आ रहे हैं दोनों में। सो आपको ये तो मालूम है भैया कि जो दोनों एपीज बन रही हैं उन दोनों एपीज का फर्स्ट कॉमन टर्म ये है, उसका जो प्रोग्रेशन डिफरेंस है वो ये। अब आपको ये सोचना है कि वो कहाँ जाकर एंड हो रही है। अब एक बात तो आप समझ सकते हैं कि वो जहां पर भी जाकर एंड होगी उसकी वैल्यू या तो 357 के बराबर होगी या इससे कम होगी, क्योंकि आपको इन दोनों सीरीज का कॉमन टर्म्स ही लेने हैं, इन दोनों सीरीज के कॉमन टर्म्स ही लेने हैं। सो नेचुरल सी बात है, वो जो कॉमन टर्म्स हैं वो 357 के बियॉन्ड तो नहीं हो सकते, क्योंकि पहली वाली सीरीज तो 357 पे एंड हो गई। ऑफ कोर्स सेकंड वाली सीरीज 421 तक जा रही है, लेकिन फर्स्ट सीरीज इज एंडेड ओवर 357. So that common term cannot exceed the last common term in this progression. The last common term in this progression cannot exceed 357. हद से हद भी अगर वो होगी बच्चों तो वो 357 ही होगी, वो 357 से बड़ी नहीं होगी, वो 357 से बड़ी नहीं होगी। हद से हद अगर वो हो सकती है बच्चों तो वो क्या हो सकता है, 357। सो लेट इट बी, जो लास्ट टर्म आ रहा है वो आ रहा है बच्चों क्या, an। मान लीजिए लास्ट टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, an। तो चलिए an इज इक्वल टू कितना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लगाते हैं भाई, फर्स्ट टर्म इस सीरीज का क्या आ गया, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 15, और ये लास्ट टर्म आ गया। और इस लास्ट टर्म की जो वैल्यू है बच्चों, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 357। हद से हद वो हो सकता है तो 357 के बराबर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 357 से ऊपर जो भी नंबर होगा वो फर्स्ट सेकंड सीरीज में तो आ सकता है पर फर्स्ट में नहीं आएगा। पर मुझे तो वो चाहिए जो दोनों में आ रहा हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 357 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। और उस बेसिस पर बच्चों, उस बेसिस पर आप इस 7 को माइनस कर दीजिए तो n माइनस 1 इंटू 15 इज लेस देन और इक्वल टू 357 माइनस 7, और इसको आप सॉल्व करिए तो बच्चों n माइनस 1 इंटू 15 की वैल्यू 350 से कम आएगी। और इसको सॉल्व करता हूं बच्चों तो n माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी वो 350 अपॉन 15 से कम आएगी। 15 ये जाएगा 3 टाइम्स 5 से, और ये 5 से जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, 5 से 70 टाइम्स ये आएगा। सो n माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी बच्चों 70 अपॉन 3 यानी कि 69, जो कि 23 होता है मेरे ख्याल से, 23.33 ये आ रहा है। सो इससे n की वैल्यू जो आ रही है बच्चों 24.33 आ रही है। ये कितनी आ रही है, 24.33। अब आप बोलो सर n तो एक इंटीजर होना चाहिए, पिछले सम में आपने यही करा, सर n एक इंटीजर होना चाहिए। यहाँ तो सर n की वैल्यू 24.33 के इक्वल आ गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने ये नहीं बोला है कि n की वैल्यू 23.33 के इक्वल है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि n की वैल्यू 24.33 के बराबर या उससे कम है। मैंने लेस देन और इक्वल टू लगाया है। सो n की अधिक से अधिक वैल्यू, n शुड be an integer only. The chapter is closed. N has to be an integer without any doubt. N should be an integer. n बच्चों एक इंटीजर ही होना चाहिए। तो n की अधिक से अधिक कितनी वैल्यू हो सकती है, n की अधिक से अधिक वैल्यू जो हो सकती है बच्चों 24। सो इन दिस कॉमन प्रोग्रेशन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बच्चों, 24। मेरे ख्याल से ये बात आपके जहन में, मस्तिष्क में आ चुकी होना चाहिए बच्चों। देखिए पहली बात तो, जब भी कोई दो एपीज दे रखे हैं और उनके कॉमन टर्म्स को लेकर आप कोई प्रोग्रेशन बनाते हो तो वो एक एपी ही आएगी जिसका फर्स्ट टर्म सबसे पहला कॉमन टर्म होगा और जिसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर होगा। मैंने आपको बताया। अब आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, जो सबसे लास्ट कॉमन टर्म है, दैट कैन बी एट मोस्ट 357 या उससे कम होगा, 357 के बियॉन्ड पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो आपने जनरलाइज में फार्मूला लगाया। अब जो लास्ट टर्म है बच्चों दैट मे बी और लेस, आइदर उसके बराबर या उससे कम है। सो उस बेसिस पर बच्चों n की वैल्यू जो आ गई वो 24.33 से कम आई। सो अधिक से अधिक n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 24। 24th भी कॉमन टर्म होगा, 23rd भी होगा। तो आपने सब टोटल टर्म्स पूछे ना, तो टोटल कॉमन टर्म्स कितने आ जाएंगे बच्चों 24। होप ये बात समझ में आई होगी बच्चों। एक सम और कर लें, पहले ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सम और कर लीजिएगा बच्चों। आपको एक सीरीज दे रखी है, सपोज कीजिए बच्चों 159 आपको दे रखा है बच्चों 13 वगैरह वगैरह। ये आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है, इस तरह की आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है। और दूसरी प्रोग्रेशन आपको दे रखी है बच्चों, एक सेकेंड, आपको दूसरी प्रोग्रेशन दे रखी है बच्चों 3 1 3 5 7 इस तरह से। और ये प्रोग्रेशन है बच्चों 401 तक, और ये प्रोग्रेशन है बच्चों आपके पास में 713 तक। ये लीजिए। चलिए, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन फॉलोइंग बोथ द प्रोग्रेशंस। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। चलिए, अभी आपके पास में क्या है बच्चों, इन दोनों प्रोग्रेशंस में कॉमन टर्म बताना आपको। तो पहली बात, सबसे पहला कॉमन टर्म कौन सा आ रहा है बच्चों, सबसे पहला कॉमन टर्म आपको दिखाई दे रहा है 5। उसके बाद में अगर अगला आप निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म 5 है, और उसका अगला टर्म अगर आप देखें बच्चों तो 9 13 17। यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। इस तरह से बच्चों आपके पास में और यहाँ पर बच्चों 13 के बाद 17 आएगा। सो फर्स्ट जो आ रहा है बच्चों वो 5 आ रहा है, और सेकंड टर्म जो आ रहा है बच्चों वो 9 आ रहा है। और मैंने वैसे आपको डायरेक्ट तरीका बताया कि जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म 1 है, और इसका भी 1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, और इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। और मैंने लॉजिक क्या बताया आपको कि जब भी कभी कोई दो एपीज दे रखी हों, जब भी कभी कोई दो एपीज दे रखी हों, तो जो कॉमन टर्म्स को लेकर जो प्रोग्रेशन बनेगी, कॉमन टर्म्स को लेकर जो प्रोग्रेशन बनेगी बच्चों, उसका सबसे पहला कॉमन टर्म आप इजीली निकाल लोगे, और उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का एलसीएम आएगा। और 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, आपको पता है। तो ये आ गया। तो इस तरीके से बच्चों 5 9 फिर आप अगली लेंगे तो वो आपके पास में 13 वगैरह वगैरह इस तरह से आएगी। सो लेट देयर बी n टर्म्स। मान लिए यहाँ पे कितने टर्म्स है बच्चों, n टर्म्स है, तो nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये है बच्चों आपके पास में 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 401। इसकी वैल्यू 401 से कम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 401 से ऊपर वाले जो टर्म्स होंगे, उनसे ज़्यादा वैल्यू के जो टर्म्स होंगे बच्चों, वो सेकेंड सीरीज में तो होंगे पर फर्स्ट सीरीज में नहीं होंगे। और इस तरीके से बच्चों n माइनस 1 इंटू 4 की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी बच्चों 396। ये 396 आ रही है, क्योंकि 5 को जब आप इसमें से माइनस करेंगे, और इससे n माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 396 अपॉन 4, और इससे n की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी कितनी, 400 मतलब 99 आ रही है, एग्जैक्ट 99 आ रही है मेरे ख्याल से। सो n की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 100 या 100 से कम। मतलब कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन दोनों प्रोग्रेशंस में जो आएंगे बच्चों वो कितने आएंगे, 100। तो यहाँ तो भैया वैसा कोई लोचा भी नहीं रहा, जैसा पिछली बार था कि फ्रैक्शनल आ रहा था तो हम सोच रहे थे कि 24.33 से कम होगा। डायरेक्ट आपके पास में 100 आ रहा है, और 100 एक इंटीजर ही है। मतलब कुल मिलाकर इन दोनों प्रोग्रेशंस में कॉमन टर्म्स एग्जैक्टली 100 ही होंगे। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा बच्चों, डिटरमाइन all those numbers between 100 and 1000. Determine all those numbers between 100 and 1000 which are divisible by 5. जो बच्चों 5 से डिविजिबल है। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए बच्चों, आप को ऐसे नंबर्स पूछे हैं जो 100 और 1000 के बीच में हैं। 100 और 1000 के बीच में है, मतलब आपको 100 1000 को इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और 5 से डिविजिबल भी है। सो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों जो 100 और 1000 के बीच में भी हो और 5 से डिविजिबल भी हो। लाजमी बच्चों सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा 105। उसका अगला कौन सा आएगा बच्चों, 110। उसका अगला कौन सा आएगा बच्चों, 115, एंड लाइकवाइज। और सबसे लास्ट नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा बच्चों
वो होगा 995। भाई 5 से डिविजिबल बोला, बड़ा आसान तरीका है, जो नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए या 0 आ जाए वो 5 से डिविजिबल होते हैं, इतनी अकल तो आपको है बच्चों। सो सबसे पहला नंबर होगा 105, अगला 110, 115 एंड अप टू कहाँ तक, 995 तक, क्योंकि आपको 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करने का है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एनीवेज नाउ यू पीपल कैन सी बच्चों दिस इज एन एपी। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी बच्चों आप देखेंगे वो एपी होगी, क्योंकि हर बार 5 5 5 ऐड करते जाइए, नंबर 5 से डिविजिबल होते जाएंगे। सो दिस इज एन एपी बच्चों, फर्स्ट टर्म इज 105, कॉमन डिफरेंस 5 है बच्चों, और लास्ट टर्म या nth टर्म जो है बच्चों वो 995 है। सो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बच्चों, यहाँ पर आ गए 995 इज इक्वल टू बच्चों 105 प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया बच्चों आपके पास में, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों 890 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। भाई आपने 995 में से 105 माइनस करा तो 890, और ये आपके पास में इससे कितनी बार जाएगा बच्चों 1, फिर आपके पास में 39 आया तो मतलब 35, और फिर 4 आया तो बच्चों 178 मेरे ख्याल से, और ये n-1 सही कैलकुलेशन किया मेरे ख्याल से। तो मैंने वो अगर इस तरह का कैलकुलेशन में कोई गलती कर भी तो भैया तो आप आगे काम कर लीजिएगा सही तरीके से। 179। सो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 और 1000 विच आर डिविजिबल 5? बच्चों ऐसे हमारे पास में 179 नंबर्स आएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 890, इससे डिवाइड करेंगे बच्चों तो 39 मतलब 7 से डिविजिबल होगा, 4 बचेगा, करेक्ट है मतलब। चलिए एनीवेज अब एक और प्रॉब्लम कीजिएगा बच्चों, find all those numbers of 3 digits, find all those numbers of 3 digits which are divisible by 7। वो सभी नंबर्स मुझे बताइए 3 डिजिट्स के जो 7 से बच्चों डिविजिबल हैं। वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब 3 डिजिट के नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे बच्चों? 3 डिजिट के नंबर होंगे 100 से लेकर तो 999 तक, इस तरह से 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं। भाई पहली बात तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 100 से 999, ये तो बहुत बचपन से आप लोगों ने पढ़ लिया था, पर आपको तो वो नंबर्स देखने हैं ना जो 3 डिजिट्स के भी हों और 7 से डिविजिबल भी हों, यही आपको करना है। तो चलिए साहब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो है इसमें देखें सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन होगा बच्चों? क्या 100 है? क्या 100 है 7 से डिविजिबल? नहीं है। 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 यस, ये 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा बच्चों वो 105 आएगा। अगला नंबर कौन सा होगा? 106 तो नहीं होगा, 107, 8, 9, 10, 11, 12। ये तयशुदा बात है बच्चों, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी यू विल फाइंड दिस इज एन एपी। जब भी इस तरह की प्रोग्रेशन बनेगी बच्चों वो एक एपी ही होगी, कंफर्म बात है, वो एक एपी ही होगी। क्यों? क्योंकि आप 7 ऐड कर देंगे फिर 7 से डिविजिबल, फिर 7 ऐड कर देंगे फिर 7 से डिविजिबल। सो आपको बच्चों हर बार 7 ऐड करते जाना है, वो 7 से डिविजिबल होता जाएगा। और जो सबसे लास्ट नंबर होगा बच्चों वो 999 के बराबर या उससे कम होगा। नाउ लेट मी फाइंड वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं बच्चों। एक तरीका तो ये है कि मैं लास्ट जो नंबर होगा वो पहचान लूं, या फिर मैं सीधी सीधी बात है वो जो नंबर होगा वो 999 से छोटा होगा, ये लॉजिक अपना लूं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूं बच्चों, दिस इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 105 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7। नाउ nth टर्म जो होगा बच्चों दैट वुड बी 105 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 7 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन और इक्वल टू 999। दैट शुड not be beyond 999. So what I find here now, this is n-1 into 7 और इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो 999 में से 105 को करेंगे तो 894 आएगा। 894 आ रहा है, आप माइनस करके देख लीजिए इत्मीनान से। और इससे 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 894 7, यहाँ पर ये 7 to 14 5 और 7 से ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल हो पा रहा है, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर बच्चों 5 रिमाइंडर फिर भी बच ही रहा है। सो अगर आप देखें तो 127, सो कितना आ रहा है 127
एक सेकेंड, सो दिस इज n माइनस वन विच इज लेस देन और इक्वल टू 127.5, मतलब तकरीबन 127.7। सो n की वैल्यू जो है बच्चों दैट शुड बी 128.7 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। अब 128.7 तो पॉसिबल नहीं है, n मस्ट बी एन इंटीजर। सो हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर बच्चों? 128 नंबर्स इस तरह से पॉसिबल हो गए। या फिर आप ऐसा उल्टा चल सकते थे कि क्या 999 7 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 998 7 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 997 डिविजिबल है? नहीं है। क्या 996 7 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 995 7 से डिविजिबल है? यस है। क्या चेक करें? नहीं है, ये भी नहीं है। 7 से डिविजिबल करेंगे तो 29 बचेगा, 115 ये भी नहीं बचेगा, लेकिन 994 तो बच्चों डिविजिबल है। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो 105 होगा, सेकंड नंबर जो है वो 112 होगा, उसके बाद में 119 होगा, और उसके बाद में सबसे लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 994 होगा, सबसे लास्ट नंबर। सो फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 7, और लास्ट नंबर ये। सो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो फिर वही, एक सेकेंड, हाँ ये आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों? 889 मिलेगा मेरे ख्याल से, और n माइनस 1 इंटू 7 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। 7 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी? 147। एक मिनट 14 क्यों होगा बच्चों? 127 ना, 127। सो n की वैल्यू 128 आएगी। आप इससे भी वेरीफाई कर लीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बच्चों। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं कि साहब सॉरी फला नंबर से फला नंबर के बीच में ऐसे नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल है, 5 से है, 7 से है, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से। तो हालांकि आप लोगों ने बच्चों जूनियर क्लास में इस तरह के तरीके पढ़े हैं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, 4 से कब होता है, 5 से कब होता है, 6 से कब होता है, 7 से कब होता है, 8 से कब होता है, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से पढ़े आप लोगों ने। उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर अभी मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो चलिए साहब, यह एक और सिंपल सी प्रॉब्लम आप लोग लिखिएगा बच्चों। हमें एक प्रोग्रेशन दे रखी है, ये लीजिएगा बच्चों, 51, 48, 45। Which term of following progression is first negative term? Which term of following progression is first negative term? वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों। देखिए अब क्या बोल रखा है इसका आपको कि इस प्रोग्रेशन का ऐसा सबसे पहला टर्म कौन सा है जो नेगेटिव है। आप देखिए बच्चों, ये एक डिसेंडिंग एपी है। नंबर्स की वैल्यूज, इसमें जो टर्म्स की वैल्यूज है बच्चों वो कम होती जा रही हैं। पहले 51, उससे कम होकर 48, फिर 45, इस तरह से। सो बच्चों ये धीरे धीरे ये एपी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें जो वैल्यूज हैं बच्चों वो नेगेटिव हो जाएंगी। भाई यहाँ पर आपके पास में ए की वैल्यू 51 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यदि आप देखें बच्चों तो वो कितनी होगी? -3। बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 51 आ रही है। ए की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 51, और डी की वैल्यू कितनी बच्चों? -3 है। सो कोई nth टर्म जो होगा बच्चों जो नेगेटिव होगा, मैं पहले वो निकालता हूं। इसके nth टर्म की वैल्यू क्या होगी? 51 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। एंड दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0। दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0। भाई नेगेटिव टर्म जो होता है, जब टर्म की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो 0 से कम ही होता है। नेगेटिव नंबर से मतलब क्या होता है? जो 0 से कम हो। सो आपको बताना बच्चों कि देखिए ये एपी आप देख रहे हैं धीरे धीरे डिसेंड होती जा रही, धीरे धीरे कम होती जा रही, 51, 48, 45, 42 लाइक वाइज। सो एक समय ऐसा आएगा जब इन टर्म्स की वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी और फिर वो नेगेटिव ही चलती रहेंगी क्योंकि और कम होती जाएंगी। अब उनमें ये पूछा सबसे पहला कौन सा होगा, तो सबसे पहला अपन ने ये मान लिया। भाई हमने मान लिया कि nth टर्म जो है वो n टर्म की वैल्यू ये होगी और अगर वो नेगेटिव तो लेस देन 0। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं बच्चों, ये देखिए ये 51 और इसको उधर ले जाइए तो ये +3 हो जाएगा इंटू n माइनस, ये आ गया। और 3 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों? 17। तो इससे n की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 17 + 1 यानी 18 से बड़ी आएगी।
n की वैल्यू ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे n की वैल्यू जो आ रही है, एक सेकंड, n की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, दैट शुड बी ग्रेटर देन 18। n की वैल्यू 18 तो वड्डी आनी चाहिए भाई, कितनी आनी चाहिए? 18 तो वड्डी मतलब उससे बड़ी आना चाहिए। और उससे बड़ी कब आएगी? सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 18 से बड़ा है? स्वाभाविक बात है बच्चों 19। सो 19th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म एंड ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे बच्चों 20th, 21st, 22nd, 23rd वगैरह वगैरह, विदाउट एनी डाउट वो नेगेटिव ही होंगे। विदाउट एनी डाउट बच्चों वो सारे टर्म्स तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो मत दो राय, डाउट वाली बात है ही नहीं। सो आई रिपीट बच्चों, आपको यहाँ पर एक एपी दे रखी है, बोला है कि इस एपी का सबसे पहला टर्म कौन सा नेगेटिव होगा। तो ऐसी क्यों सिचुएशन बन रही है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो है वैल्यूज कम होती जा रही है, तो फिर अभी पॉजिटिव, एक समय ऐसा आएगा जब नेगेटिव, और उसके बाद धड़ाधड़ नेगेटिव चलेंगे। फर्स्ट टर्म लिखा n-1 इंटू डी, माइनस वाले को RHS पे लेकर वो प्लस हो गया, इससे 17 टर्म चला गया। और इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों कि n की वैल्यू 18 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 19 भी होगी, 20 भी होगी, 21st भी होगी, लेकिन उनमें सबसे पहले कौन सी होगी? 19th। सिंपल। एक छोटा सा सम और करिएगा, बड़ा सिंपल सा सम दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, √2 + 1 प्लस √2 प्लस √2 - 1 वगैरह वगैरह। कुछ नहीं करना बच्चों, आप तो सिंपल मुझे इस सीरीज का 10th टर्म बता दीजिए। 10th टर्म बड़ा सिंपल सा है बच्चों। मैं लेक्चर के बिल्कुल अंत में बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ देख लिया है इसमें बच्चों। अब देखिए, क्या ये एक एपी है? पहले ये वेरीफाई कर लीजिए, है? क्यों है? क्योंकि आप डिफरेंस निकाल कर देखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर देखिए -1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल कर देखिए -1 आ रहा है। बट डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करके देखो, -1 आता है, इन दोनों इसमें से इसको -1 आता है, डिफरेंस -1 आ रहा है। और डिफरेंस जब इक्को वर्गा आए भाई, एक जैसा डिफरेंस आता है, तो उसे बड़े बुजुर्गों ने नाम दिया है एपी। और बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है तो उसे सम्मान के साथ में मानो और करो। तो ए की वैल्यू कितनी? √2 + 1 और कॉमन डिफरेंस -1 होएगा। तो भैया इसका कौन सा टर्म बताने का आपको? 10th टर्म। तो 10th टर्म इस एपी का क्या होगा? इस एपी का 10th टर्म होगा बच्चों ये +10 - 1 इंटू डिफरेंस -1। और इस तरीके से बच्चों √2 + 1 -9, ये लीजिए 10 - 1 -9। बड़ा लुच्चा सा सम है, बस कई बार कुछ लोग इसको देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा सम करा दिया। एक और कर लीजिएगा बच्चों, आप पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अगला सम है बच्चों p + q + p प्लस एक सेकेंड, p + q + 2p + 3p - q प्लस लिखने की तो जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये प्लस तो अननेसेसरी लिखा है मैंने, इसका कोई जरूरत नहीं है बच्चों, सॉरी। आपको इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म पूछा था? आपसे इस प्रोग्रेशन का 10 टर्म पूछा था, वो आपने निकाल दिया। लाइकवाइज चलिए इस प्रोग्रेशन का भी बच्चों आप 20th टर्म बताइए। कौन सा टर्म बताएंगे इस प्रोग्रेशन का बच्चों? 20th टर्म। वीडियो को पॉज करके कीजिए, इतनी देर में कर भी दिया होगा आप लोगों ने शायद। क्या होगा बच्चों? यदि आप इसमें से इसका डिफरेंस निकालें तो वो बच्चों p - q आ रहा है। आराम से इसमें से इसको माइनस करके देखिए, इसमें से इसको माइनस करके देखिए, फिर से p - q, इसमें से इसको माइनस करके देखिए, फिर से p - q। आप कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स लेते हो बच्चों, उनका डिफरेंस हमेशा p - q ही आ रहा है। भाई इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। बड़ा लुच्चा सा सम है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जिस तरह के सम्स कर लिए उस लिहाज से तो काफ़ी सिंपल है। सो बच्चों यहाँ पर इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? p + q, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? p - q। भाई फर्स्ट टर्म होगा p + q और कॉमन डिफरेंस होगा p - q। सो आपको क्या करना है? कौन सा टर्म बताने का है? 20th टर्म। तो 20th टर्म कैसे लिखोगे बच्चों? 20th टर्म लिखोगे फर्स्ट टर्म प्लस 20 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही करने का है। और ये है बच्चों p + q, और ये है बच्चों 19p, एक सेकेंड, 19p - 19q, यही कुछ आएगा।
भाई ये आपके पास में p प्लस क्यू है, कॉमन डिफरेंस n माइनस वन इंटू डी यही आएगा, और इनमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए बच्चों, सिंपल सम है 20p प्लस 18 माइनस 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 माइनस। और भैया लेक्चर के दौरान अगर मैंने कुछ माइनस प्लस की, या 2 को 3, 3 को 2, 5 को 7, 7 को 5, इस तरह की कुछ गलतियां करता रहा हूं, तो भैया मैं हमेशा, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं माफ़ी मांगता आ रहा हूँ मेरी बीवी से, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। कुछ गलती हुई है भैया उसको आप संभाल लीजिएगा, फंडामेंटली एवरीथिंग इज़ एक्सेलेंट।